Namaskar, Adab, Sat Shri Akal. A very warm welcome, everyone. Hope you all are doing well. Hope you're staying safe and staying healthy. Hello, everyone from around the world. Hello, Kazad. Hello, Deepa ji. Hello, Caroline. Hello, Manjeet ji, Sapna ji. I am not good at such sessions. I'll be very honest. I normally avoid doing such kind of sessions as well. बहुत देर हो गई ऐसे sessions करने में. I think कुछ और लोगों की माहिर है. Hats off to them. Hats off to them. Uh, but it was very important to come live and to speak about certain things. This was long due, I would say. Unfortunately, I really didn't want to do it, but I will do it. क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं. सबसे पहले तो obviously before I expose the friend, the so called friend, एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं. आई माइट नॉट बी एबल टू प्ले द एंटायर थिंग. आई मे बी नॉट विल प्ले एवरीथिंग. एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा और मैं पहले बोलूँगा उसके बाद मैं आई एम गोना मेक यू हेयर दैट एज वेल. पर उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो समीर वानखड़े के साथ हो रहा है. आई have been very, very vocal about supporting the NCB and supporting Sameer Wankhede. I will continue to do that no matter what happens, no matter कौन क्या पुरानी चीजें लेके आएगा, क्या नई चीजें लेके आएंगे, क्या नया खड़ा होगा उसके अगेंस्ट. I give a damn right now because I will go. अगर कल को गलत प्रूव होता है तो हो जाए. एक बार और सही. Because I've always, put a lot of trust in people, a lot of trust in humanity, and I will definitely do that for Sameer Wankhede as well. Uh, Give me 1 second. I know this is. Okay. Hello, Sat Shri Akal ji. Sat Shri Akal, everyone. Full support to Sameer Wankhede. Yes. So let me first show you जो एक छोटा टॉपिक है जिसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा. आज I will talk about it later. But let me just put this on the screen for you guys first. And thank you, Pooja, for sending me. Actually, a couple of people had sent me this. Let me just share my screen. और आज हम to the point. I'm gonna keep this session short, and I will make sure the message goes out right. So ये एक बकवास चल रही है सोशल मीडिया पे. Let me try to zoom in a little bit. ये एक हरकत करवा रहे हैं एनसीबी चीफ समीर वानखड़े के अगेंस्ट बाय सम ऑफ दीज इडियोटिक आईडीज हैंडल्स. इतनी खूबसूरत बीवी को क्यों छोड़ दिया. एंड रीड व्हाट इट सेज. ट्विस्ट इन द नार्कोटिक्स ब्यूरो डायरेक्टर समीर वानखड़े saga. Sameer Dawood Wankhede got married in December 12th, 2006 with Dr. Shabana Qureshi and has two daughters. Kranti Redkar is his second spouse. He also happens to be distant relative of NCP minister Nawab. Okay. इस तरह की चीजें चल रही हैं सोशल मीडिया पे अगेंस्ट समीर वानखड़े, टेकिंग पर्सनल digs at him, उनकी पर्सनल लाइफ. Absolutely, torture. Maybe आप शायद torture लिखना चाहती थी सुप्रिया, and that's what I will take it as. This was definitely a torture that's happening on Sameer, so that he could be kicked out of this particular fight for the cleanup or bringing the drug-free India dream to a reality. सिर्फ ये हो रही है. This by God or whatever you want to call him, this idiot minister is using all the tactics right now. और सिर्फ वही नहीं, बहुत सारे लोग मिलके they are taking action against the NCB and Sameer Wankhede to bring him down, to bring him out of this movement. Agenda बहुत clear है, and this is my personal take on it, and I'll stand by my personal evaluation or analysis of this. Sameer Wankhede is going to be with this particular NCB team till December, when he's due for another extension.
Now, the way I see this is, these idiots are putting a lot of false allegations and false statements against him, um, so that uh, these guys can literally stop him from another extension in December. Uh, so, okay, one second. All right. So that they can stop him from the next extension. Case डालेंगे, investigation में जाएगा, and when somebody is under investigation, he might not be able to get an extension. I think this is the agenda that they have in their mind. uh, and yes, Caroline, that's what, around December timeframe, that's what Samir told me, that he will be due for his next extension. And I initially thought he was already extended for like till next year, but that's not the case. He is here till December, and after that, he's gonna file another extension for that. So ये लोग ये कर रहे हैं, and they're wasting a lot of precious time. Samir ka NCB team ka, because Samir just sent me this, and I'm gonna flash it on the screen for all of you. He is wasting all his time, energy, money on creating these kinds of press releases, investing time on this. uh, so ये एक press release है. I apologize in advance अगर ये already public में, I'm sure it has already gone out. Samir, I'm so sorry if it has not, but I will read out everything for you all, because this is what has been sent by Samir to me. So if you see, it says, and this is for today itself, I think 25th hai aaj India mein. Yes, it has come to my notice that Shri Nawab Malik, Honorable Minister of Minority Development, Government of Maharashtra, has published some documents related to me on his Twitter handle today, alleging Sameer Dawud Wankhede ka yahan se hua farjiwada. In this context, I would like to express that my father, Shri Dhananand Kachruji Wankhede, retired as Senior Police Inspector of State Excise Department, Pune, on 30th June 2007. My father is a Hindu, and my mother, late Mrs. Zahida, was a Muslim. I belong to a composite, multi religious, and secular family in a true Indian tradition, and I'm proud of my heritage. Further, I married Dr. Shabana Qureshi in 2006 in a civil marriage ceremony under the Special Marriage Act of 1954. Both of us divorced mutually through civil court under the Special Marriage Act in the year 2016. Later, in the year 2017, I married Srimati Kranti Dinanath Redkar. The publishing of my personal documents on Twitter is defamatory in nature and unnecessary invasion of my family privacy. It is intended to malign me, my family, my father, and my late mother. The series of acts of Honorable Minister over the past few days have put me and my family under tremendous mental and emotional pressure. I am pained by the nature of personal, defamatory, and slanderous attacks by Honorable Minister without any justification. So, this is what is happening, guys. I have already said it multiple times, and I would not shy away from saying it one more time, that this thing needs to stop. This really needs to stop. And I am urging, लास्ट टाइम भी मैं दो सेशंस में बात कर चुका हूँ इस बारे में, और मैं आज भी यही कहूँगा. I really want all of you to stand up, to rise up, and speak against all this nonsense that this minister is doing on social media. I know a lot of you are already responding back, giving him 10 folds. I want you to make it 1,000 folds. We really need to give him back and ask him to shut his mouth up right now. This is not expected out of anybody to take such kind of digs on anybody. And Samir Wankhede is not a simple, राह चलता सड़क चलता कोई बंदा नहीं है जिसको तुम टारगेट कर रहे हो. He's an officer who's doing something really great for our country.
for our community. And this kind of behavior is totally unacceptable. So, guys, now is the time that you really need to. If you haven't done it, I urge you to please set up a session, a Twitter account, sorry, and tag this idiot minister and tell him to stop his bullshit. And wherever he bullshits around Samir Wankade or NCB team, you need to give him back thousands of times. This behavior is not acceptable at all. अ, साफ सी बात है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि समीर वानखेड़े और एनसीबी टीम को रोका जा रहा है, एंड दिस इज द ओनली थिंग दैट दे कैन डू इज, क्योंकि प्रोफेशनली समीर वानखेड़े कैनॉट और हैज नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, इवन ऑन पर्सनल लाइफ ही हैज डन नथिंग रॉन्ग. अपनी वो जो ट्रैवल के लिए भी दे हैव टू सीक अप्रूवल व्हिच ही डिड, एंड ही हैज नॉट बीन टू दुबई, ही हैज ओनली बीन टू मालदीव्स, एंड इट वाज अप्रूव्ड Maldive trip. Everything is black and white in case of Samir Wankhede as of now. There is no dubious thing that he has done. So, guys, we really, really, really need to stop this man who is the NCP chief, एक तरह से, या this idiotic minister जिसको इतनी respect दी जा रही है. इस press release में भी I was so sad to see, he's बार बार honorable minister of minority development, government of Maharashtra. नीचे भी लिखा है, आई एम पेन्ड बाय ऑनरेबल मिनिस्टर, ऑनरेबल माय फुट. This is not an honorable thing that he is doing. He is going below the belt. First targeting the sister, now targeting family, marriage, mother ko. Enough is enough, guys. Enough is enough. Absolutely, Swapna ji, they are trying to divert the case. Let me just see. Thank you, Ranjita ji. Thank you, Ranjit ji. गवर्नमेंट शुड सपोर्ट, गवर्नमेंट का तो अभी हम क्या बात करें. Yes, and demoralize him. Absolutely, Shalini. This is nothing else but to derail, of course, the case, derail Samir Wankhede, and demoralize him. Absolutely, you're right. We are, यहाँ पर लिखने से chat में and all that, I think is very encouraging. I definitely pass on all these messages to Samir myself personally, but this needs to go to social media as well now. Enough of these chat messages, enough of these video messages जो हम एक दूसरे के लिए बनाते हैं. ये प्यार, ये भाईचारा हम कभी बाद में दिखाएंगे when Samir plans to join any of the sessions. At this point of time, this needs to translate into strong messages on social media. So please go ahead and attack, literally attack, as much as you can, and stop this idiot minister. होंगे ये मिनिस्टर अपने पोर्टफोलियो के, but this is not acceptable that you continue to stoop so low कि फैमिली मैटर्स और फैमिली चीज़ों को निकाल के, पुरानी बातों को निकाल के यहाँ पर रखा जाए. दिस इज रियली रियली सैड. दिस इज रियली हार्ट ब्रेकिंग कि एक ऑनेस्ट ऑफिसर के साथ ये सब कुछ हो रहा है, एंड वी रियली नीड टू स्टैंड फॉर हिम. सो this is one of the things that I really wanted to talk about, and I will continue to do. I'm gonna attack no matter who that is. आज वो कुत्ता मिक्का सिंह या पता नहीं क्या उसका टाइटल है, मैं भूल गया. कोई कुत्ता मिक्का सिंह या किंग मिक्का सिंह, कुछ तो ऐसा लिखता है वो. आई थिंक कुत्ता ही लिखा होगा. उसने भी अटैक किया. KRK ने अटैक किया. फराह खान, and the list goes on and on and on. Every blue tick, every social media पे they are now targeting NCB and Samir Wankhede फॉर वट एवर रीजन्स. उनके अपने पर्सनल रीजंस होंगे. कभी ना कभी उनके फैमिली मेंबर को, कभी उनके किसी रिश्तेदार को पकड़ा गया होगा, समीर ने पकड़ा होगा या एनसीबी ने पकड़ा होगा, ड्रग्स लेते पकड़ा होगा, मनी लॉन्ड्रिंग करते पकड़ा होगा, टैक्स इवेट करते. सो दैट कुड बी द रीजन दैट these guys have now pooled together and they are attacking Samir like this. Very sad, very very sad to see all this nonsense happening. तो जहां तक रही ये वाली बात, पहले तो ऑब्वियसली आई वांटेड टू टॉक अबाउट समीर. नाउ लेट मी स्विच सम गियर्स. नथिंग टू शेयर, सो लेट मी जस्ट कम बैक ऑन द स्क्रीन. दूसरा, आज लेट मी सी इफ आई कैन, लेट मी ब्रिंग अप नितेश राणे और उनके ट्वीट. आपने भी देखा होगा आज ट्विटर पे. मुझे नहीं पता व्हाट इज द रीजनिंग, व्हाट इज द बैकिंग ऑफ दोस ट्वीट्स, बट आई विल जस्ट गो अहेड एंड ओपन दैट.
आज नितेश राणे ने कुछ ट्वीट्स करे हैं एंड समझ नहीं आता इनका भी वैसे तो बेसिकली देखा जाए तो बट लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन वन मोर टाइम. ओके, लेट मी डू दिस. ओके, तो ये नितेश राणे ने कुछ ट्वीट किए थे आज. आई थिंक आप लोग अब पढ़ सकेंगे. या, हियर वी गो. और वो लिखते हैं कि इफ एवरीथिंग दैट this certain Prabhakar Sahil is saying is true without knowing what his background is, then why not believe Ganesh Shivarkar, who confessed in front of me and an MLA friend that he was threatened by Yuva MVA minister when he was hospitalized, where the minister confessed everything about SSR and Disha Salian and even told him to back off. I have the sound recording of this and can make it public. Let the rules be same for everyone and everyone then. Don't say he is a no one. Later, he was very close to SSR. He was admitted in Balasaheb Thackeray Trauma Hospital in Jogeshwari. Okay. So, ये जिनके बारे में बात कर रहे हैं हमने इनके बारे में दो तीन बार एक्सपोज कर चुके हैं इनको. ही इज टॉकिंग अबाउट दिस very stupid and very idiotic Ganesh Shivarkar. Yes, I'm taking his name and he can do whatever he wants to do it now because enough is enough of this man. अभी भी कुछ गिने चुने 10-12 लोग हैं जो अब मुझे अभी भी कांटेक्ट करते हैं, मुझे अभी भी कहते हैं कि वरुण, व्हाई डोंट यू टॉक टू गणेश, व्हाई डोंट यू रिजॉल्व थिंग्स, व्हाट इज रॉन्ग. The thing that is wrong with Ganesh is he is not Sushant's friend with a big period. He is someone who has misused, abused Sushant's name, again with a big period. Why I am talking about this idiot Ganesh Hivarkar and why I am doing this is he has abused Sushant Singh Rajput. Not once, not twice, multiple times. कुछ लोगों ने बताया था. Unfortunately, this particular audio recording जो मेरे पास भी है उसके अंदर भी I am not gonna play the entire recording because I don't want to kind of reveal who the other person is and all that stuff at this point of time. We will. But this guy, Ganesh Hivarkar, has abused Sushant Singh Rajput. Unfortunately, fortunately for him, fortunately for Ganesh Hivarkar, ये जब रिकॉर्डिंग मुझे आई थी, जब जब भी आई थी मैंने पूरी एंड टू एंड वर्ड बाय वर्ड ध्यान से नहीं सुनी. दैट्स माय बिगेस्ट मिस्टेक. आई रियली 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 अपोलोजाइज टू ऑल द पीपल, टू ऑल द एसएसआर वॉरियर्स. काश मैंने ये रिकॉर्डिंग पहले सुनी होती तो मैं इसको पहले लाता, मैं पहले इसका मुंह पे तमाचा मारने जाता. आई वुड हैव गॉन फिजिकली एंड वुड हैव मैं क्या बोलूं, गाली भी मैं सोच समझ के देना चाहता हूं. मैं इसके मुंह तोड़ देता इस इंसान का. ही हैज क्रॉस्ड ऑल द लिमिट्स. अब की बार अगर मुझे किसी ने, अब तक मैं उन लोगों की सुनता आ रहा था जो मुझे कह रहे थे कि आप गणेश के साथ बात करो, आप गणेश के साथ ठीक करो, मे बी देर इज सम काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग. आफ्टर दिस पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग आई विल वांट, वो जो 10 लोग भी है उनको वार्न कर रहा हूं मैं, अगर आप लोग मुझे कांटेक्ट करेंगे आई एम गोना ब्लॉक यू बिकॉज आई डोंट वांट टू हियर एनीथिंग अराउंड दिस मैन जिसको सुशांत की रिस्पेक्ट नहीं थी. And that's why I'm going to play this only for you guys so that you can hear what this man calls Sushant. Give me 1 second. Just give me 1 second because I have to move this to that marker.
All right, guys. So looks like you might be able to hear it. If you're not, I'm gonna play it again. Just hear this particular thing. उसने क्या किया, ये सारी चीजें मुझे बताई थी नीचे। हाँ। चक्कर ये था कि नीचे मतलब Okay, I think this is the point. Please listen to this carefully. ये बहुत बड़ा झूठा था, सुशांत। Did you hear this? Let me know if you were able to hear this nonsense. Okay, I'm going to give it one more shot. Let's see if you can hear it now. क्या हुआ, ये बहुत बड़ा झूठा था, सुशांत। यार ऐसे क्यों वर्ड्स? ओके, सो जो लोग नहीं सुन पा रहे उनको मैं सुना देता हूं अपनी वर्डिंग में जो इसने बोला है। ये जो था सुशांत बहुत बड़ा सी था, ये बोल रहा है गणेश हिवारकर टू सुशांत सिंह राजपूत। ये मैंने आज सुना पहली बार, और इसलिए मैं ये सेशन आज नहीं होने वाला था कोई, बट आई कुड नॉट होल्ड ऑफ। एंड दिस सो कॉल्ड फ्रेंड has abused Sushant in this recording. He has also said certain things around some photographs जो इसके पास है, जिसके लिए इसको 2 से 3 करोड़ चाहिए थे। अभी तो मैं आपको एक और वो 2-3 करोड़ वाली भी जो है अरे वो हमको कम से कम 2-2.5 करोड़ रुपए। सुना आपने ये? इसको 2-2.5 करोड़ रुपए चाहिए टू सेफगार्ड हिमसेल्फ। 2-2.5 करोड़ रुपए चाहिए इसको। सेफगार्ड क्या करना है इसने अपने आप को सेफगार्ड ये करना है कि इसके पास सो कॉल्ड कोई फोटोग्राफ है जिसके अंदर इसने शायद सुशांत के साथ रिया चक्रवर्ती को देखा है ऑन 13th या कुछ तो है इसके। एंड ऑफ द डे ये है वो सो कॉल्ड फ्रेंड ऑफ सुशांत सिंह राजपूत जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, जो पैसे के लिए, पहली बात तो इसके पास कोई फोटोग्राफ होगी नहीं। इसने यहां तक ये भी क्लेम किया है, मैं आपको, वो कहते हैं ना, आई विल बी क्लीनिंग अप दिस पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग, आई जस्ट बिकॉज आई रियली वांट टू सेफगार्ड द अदर पर्सन। बट अगर वो अदर पर्सन भी एक्नॉलेज करेंगे देन विल प्ले द होल थिंग। एंड यही कॉन्टेक्स्ट नितेश राणे बात कर रहे हैं अपने ट्वीट्स में, where this idiot called him up and he said the same things जो इसने मुझे बोला, जो इसने बहुत सारे लोगों को दे बोला है, वही चीज इसने नितेश राणे को भी बोली है कि ही इज गोना ब्रिंग आउट। और ये जो बात कर रहे हैं
मैं इस वाले ट्वीट के ऊपर जाता हूँ। अब आपको थोड़ा हँसाने की भी मैं कोशिश करूँगा। हँसाने की क्यों? क्योंकि ये एक कन्वर्सेशन हुई थी मेरी, जिसके अंदर मुझे गणेश ने बोला था कि भाई साहब ये उस हॉस्पिटल में गए थे, इनको पुलिस लेके गई थी फॉर हिज़ टेस्ट। सो अगर आपको याद हो, इसको अरेस्ट किया गया था और उस टाइम पे ये प्रोटोकॉल था कि इसको बेसिकली कोविड टेस्ट के लिए लेके जाया जाता है। तो इसको कोविड टेस्ट के लिए लेके गए थे और वहाँ पर जहाँ इसको लेके गए थे कोविड टेस्ट के लिए, सपोज़िडली इसके लिए आदित्य ठाकरे आए थे वहाँ पर इसको मिलने, उस हॉस्पिटल में, और आदित्य ठाकरे ने इसके मुँह पे थप्पड़ मारा था और इसका दाँत टूट गया था। और द थप्पड़ क्या मारा था कि तू क्या बोल रहा है? कि तू क्या कर क्या रहा है सोशल मीडिया पे? आप ये देखें सबसे पहली बात कि ये अपने आप को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, इनके हिसाब से ये आदित्य ठाकरे इनको थप्पड़ मारने आएँगे वहाँ पर हॉस्पिटल में, क्योंकि ये महाराज सुशांत के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और यही चीज़ नितेश राणे जो लिख रहे हैं, कन्फेस्ड एवरीथिंग अबाउट एसएसआर। तो ये बताया गया था कि वहाँ पर जब ये गणेश शिवारकर मिले थे आदित्य ठाकरे को, तो आदित्य ठाकरे ने उसको कहा था कि तूने देखा ना कि सुशांत के साथ क्या हुआ, तो तेरे साथ भी यही होगा। इमेजिन द ऑडेसिटी ऑफ दिस मैन। ये अपने आप को इतना हीरो समझते हैं, ये अपने आप को इतने बड़े तीसमार खान समझते हैं कि इनके लिए आदित्य ठाकरे आएँगे इनको समझाने के लिए कि आप सोशल मीडिया पे आवाज़ ना करें। मतलब चाहे व्हाटएवर वी थिंक ऑफ Aditya Thackeray and all that stuff, do you even imagine a person like Aditya Thackeray going to meet Ganesh Avarkar in a hospital and slapping him? Slapping him, I don't mind. मैं तो कहता हूँ जिसको जो मिले इसको दो मेरी तरफ से भी लगा देना. I would really love you to kind of give him 2, 3, 4, 10, how many slaps you want on my behalf as well. बट आदित्य ठाकरे इसको मिलने वहां जाएंगे, पुलिस के साथ मिलके इसको थप्पड़ मारेंगे। मतलब हंसी का भी ना, मेरा जब मैंने पहली बार सुना था तो मुझे मेरी खुद की हंसी नहीं रुक रही थी, मैं सुनता जा रहा था। बट ये वो फ्रेंड है जो सुशांत को गालियां देता है, ये बॉलीवुड में रहना चाहता है और इसने क्या बोला वो एक बार कि मैं सुशांत से बड़ा स्टार बनना चाहता हूं। इसको पहले कोई बताए, ना अकल, ना शक्ल, ना कोई एक्टिंग, ना कोई डांसिंग, और ये बनने जा रहे हैं सुशांत से बड़ा सुपरस्टार बनने की कोशिश। शेम ऑन दिस मैन, जिसको हमने इतना ज़्यादा रिगार्ड दिया, इतना ज़्यादा रिगार्ड दिया, एंड आई फील अशेम्ड माय सेल्फ। कई लोग इसके अगेंस्ट खड़े हुए थे और मैं इसके साथ खड़ा रहा था उस टाइम पे कि शायद ये सुशांत का फ्रेंड है, शायद इसने सुशांत के साथ इतना टाइम स्पेंड किया है, शायद सुशांत के साथ इसकी कोई ऐसी कनेक्शन होगी जिस वजह से ये सब कुछ कर रहा है। आज की डेट में दिस इज़ व्हाट इट हैज़ कम टू। वंडर कुमार जी, अंकित आचार्य तो अभी बहुत देर से वी आर नॉट इन टच विद हिम। वी विल डेफिनेटली, अगर अंकित का, बट अंकित कुछ नहीं ऐसा कर रहा, एंड आई बिलीव अंकित इसी वजह से, इसकी हरकतों की वजह से शायद इसके साथ अलग हो गया था। आज तो मैं आपको और भी चीजें बताने को तैयार बैठा हूं यहाँ पर। जब ये हमने एक सेशन किया था अंकित के साथ, सबसे ज़्यादा जिसको आग लगी थी, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गणेश को लगी थी कि सिर्फ़ अंकित के लिए आपने ऐसे सेशन क्यों किया? आपने वो जो उनकी गॉड मदर कहे हैं जो, कि उनके साथ आपने ऐसे सेशन करके आपने अंकित के लिए पैसे, इसने बहुत लोगों को फ़ोन करके मैसेज करे और मेरे बारे में बहुत बकवास करी कि वरुण ने उसके लिए सेशन किया और उसको पैसे इकट्ठे करवाए हैं, उसके लिए 1.5-2 लाख रुपए इकट्ठे करवाए हैं। बॉस, उस टाइम पे जो उसकी हालत थी, जिस तरह थी, येस मैंने उस टाइम पे सपोर्ट किया। उस इंसान ने कभी कुछ गलत नहीं बोला सुशांत के लिए। उस इंसान ने कभी मुझे भी कोई गलत चीज़ नहीं डिमांड करी। अनलाइक हिम, जो हमेशा-हमेशा एक-दूसरे को लड़ाने के लिए, एक-दूसरे यूट्यूबर्स के बीच में हर जगह ये सब कुछ करता था। एंड दैट इज़ द रीज़न आई थिंक व्हाई अंकित आल्सो बैक्ड ऑफ। मुझे अब अंकित की कुछ बातें याद आती हैं। अंकित ने मुझे बड़ी क्लियरली बोला था, मैं इसने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ अंकित को कहो मेरे साथ खड़ा हो, बहुत क्रेडिबिलिटी लूज़ हो गई है, ये है, वो है। अंकित ने मुझे यही कहा था कि वरुण भैया मुझे नहीं करना कुछ इसके साथ, मुझे इस इंसान के साथ खड़ा भी नहीं होना। ये मुझे हर बार ऐसे बुलाता है, हर जगह बुलाता है, पर मुझे नहीं करना। जो था मेरा सुशांत भैया के साथ मैंने कर लिया। अब सुशांत भैया के बाद मैं अब इस तरह की चीज़ों में और नहीं पड़ सकता। उसने पहले ही अ यू नो अपने आप को बाहर निकाल दिया था।
but this guy definitely needed to be exposed, and I will not stop from exposing anyone. Unfortunately, yes, Wonder Kumar, all are fraud. Varun, you people are trusting all blindly because you're emotionally connected people. Emotional, that's the problem. That is the problem, Wonder Kumar ji. uh, इमोशनल होके सुशांत से रिलेटेड किसी का भी नाम सुन के हम ब्लाइंड फोल्डेड हो जाते हैं, वी आर ब्लाइंड साइडेड एक्चुअली, कि व्हाट, दिस गाय डेफिनेटली और दिस पर्सन विल बी सपोर्ट सिस्टम। इनफ ऑफ दिस मैन, आई स्वेयर। मुझे पता है इसके बाद अब गणेश यू विल टेक एन अटैक एंड यू विल डू एन अटैक ऑन मी, गो अहेड। आई रियली डोंट गिव अ डैम। अगर एक मिनिस्टर तक को मैं नहीं यहाँ पर हम बख्श रहे जो समीर वानखड़े को अटैक कर रहे हैं, बेटा तुम तो कोई चीज नहीं हो, तुम तो कहीं के नहीं, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा अब। तुमने सुशांत को गाली दी कैसे? तुम होते कौन हो? तुम्हारी औकात क्या है? तुम सुशांत को सी बोल रहे हो? तुमसे बड़ा सी, एम सी, बी सी कोई बहुत बड़ा मैंने देखा नहीं है, जिसने एक एक मरे हुए इंसान को अपने दोस्ती के नाम को हर चीज को यूज करके तुम ये कर रहे हो। तुम्हें पैसे चाहिए थे, तुमने एनआरआईज ग्रुप में से पैसे मांग के अपनी टिकटें, अपने खाने, अपने अरेंजमेंट्स कराने की कोशिश की। क्या क्या सुनोगे? सब चीजें बाहर निकल के आएंगी। बहुत देर से तुम्हारे बारे में बहुत सारी चीजें सुनते आ रहे थे और एक्सपोज करने के लिए सिर्फ रुक रहे थे कि क्या करना है। एक बेचारे का शायद करियर फ्यूचर है, पर तुमने जिस तरह सुशांत को गाली दी बेटा, अब तो नहीं। आज तक जो जो चीजें मैं सुनता आया था मैं इग्नोर करता आया, इसलिए कि सुशांत के दोस्त, तुम सुशांत को गाली दोगे तो उसके बाद तुम सोचोगे कि मैं तुम्हें ऐसे जाने दूंगा या छोड़ दूंगा। बॉस, मैं यहाँ पर टाइम पास करने नहीं आया। यहाँ कोई मेरा सुशांत ना दोस्त था, ना भाई था, ना मेरा कोई रिलेशन था। बट इस टाइम पे सुशांत अंदर तक घुसा हुआ है। हमारी फैमिली लाइफ में सुशांत के बारे में बातें होती हैं। कहीं जाता हूँ फ्रेंड सर्कल में, वहां पर मेरे से पूछते हैं कि क्या हो रहा है सुशांत के बारे में, बिकॉज एवरीबडी नाउ नोज दैट आई एम स्टैंडिंग हियर फॉर सुशांत। और तुम साला दोस्त बन के ये करते हो, सुशांत को गाली देते हो। तुम्हारे जैसों को तो गाली भी देना ना, थूकना भी जिसे कहते हैं तुम्हारे पे, वो कम है। So yes, it is an open challenge right now. Do whatever you want to do it. I will make sure now. तुमने सुशांत को गाली दी है बेटा, ये तुम जिंदगी भर पछताओगे कि तुमने सुशांत को गाली कैसे दी। So मैं इस सेशन को ऑब्वियसली आई एम सो अपसेट एंड आई एम सो एंग्री राइट नाउ। दूसरी बात मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ एंड आई एम डूइंग इट ऑन लाइव। ये सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स विल गो टू समीर वानखड़े। थ्रू समीर वानखड़े दिस इज गोइंग टू द सीबीआई टीम। अब जो तुमने फोटोग्राफ्स की जो दहाड़े मारी है ना सबके सामने, चाहे वो नितेश राणा को बोली हैं, चाहे वो तुमने मुझे बोली हैं या किसी और को भी बोली हैं, अब वो सीबीआई ही तुमसे निकलवाएंगी कौन सी फोटोग्राफ्स। सो दीज रिकॉर्डिंग्स आर गोइंग टू ऑल द एजेंसीज, सारी की सारी। अब वो तुमसे निकलवाएंगी तुम्हारी फोटोग्राफ्स। जो दो दो फोटोग्राफ्स के लिए तुम्हें 2.5 करोड़ रुपए चाहिए थे ना, तुम्हें वो 2.5 करोड़ जो छितर पड़ेंगे ना, जो जूते पड़ेंगे, अब तुम उसकी तैयारी करो कि तुम्हें वो 2.5 करोड़ छितर कैसे पड़ते हैं। एनीवेज, आई एम सो अपसेट विद दिस मैन। इसको मैंने बहुत इज्जत दे दी, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे दी थी। आई एम गोना जस्ट ओपन इट फॉर फ्यू मिनट्स गाइस, एंड आई नो देयर आर पीपल हु वांट टू शेयर देयर व्यूज। एक बार फिर जस्ट टू रैप इट अप, मैं अपनी तरफ से मैं बोलूंगा, नितेश राणे को भी मैंने अभी मैसेज किया है। आई जस्ट वांट टू मेक श्योर ही doesn't get fooled by the stupid statements that this man has made. रिकॉर्डिंग जो वो बात कर रहे हैं शायद ऑलमोस्ट सिमिलर रिकॉर्डिंग मेरे पास भी है। आई एम श्योर उन्होंने अपनी भी रिकॉर्डिंग की होगी। I will make sure this man pays for it. This man will not be left. और गणेश, तुम्हें अब किसी और लेडी या किसी और बंदे को आपने टारगेट किया या अपने फेक आईडीज क्रिएट करके आपने कुछ किया, तो अब आप देखो उसके लिए भी डबल जेल जाओगे। अभी बहुत हो गया तुम्हारा। मैं आई नॉर्मली डोंट गेट इनटू ऑल दिस नॉनसेंसिकल काइंड ऑफ टोन। You've crossed all the freaking limits and I'm done with you. Hello Sonal. Hi Sachin. Hi, hi, Varun. Hi, Sachin. Um, Varun, I just wanted to say that Aditya Thackeray slapping Ganesh is as true as Ganesh being the friend of Sushant Singh Rajput. तो दोनों की इतनी ही गलत बात है कि मतलब and I did not trust him even from the Republic days when he wanted like RS Proud Hindu said in the chat, right? Like he always
wanted to hog all the limelight, and it was very, very visible. And then he has used so many people like Ankit and all of that. And the worst part was even being asked a normal question, the kind of galis that he has given to me and my parents in his alias IDs could put a devil to shame. So this fraudster has been exposed, and even the Cooper Hospital, that video, he was the one who was there. इसका तो बहुत ही निकलेगा बाहर. अभी तो he has to pay back every penny. He is not a friend of Sushant. He has really made tons of money by using that story. अभी अभी सारा बाहर आएगा. I mean, look at the audio that you're playing. I mean, Sushant and his name can't even be in one line actually. So that's all I wanted to share. Yeah, no, absolutely. And जैसे कि मैंने कहा कुछ लोग अभी join कर रहे हैं, let me just repeat one more time, guys. I just talked about two things. One is, of course, the unconditional support for Sameer Wankhede, because मैंने वो press release जो थी है, I just hope Sameer has already done that, but he had shared with me, so I thought it was already public, so I shared that press release as well with all of you. He's also getting targeted, but more importantly, उससे ज़्यादा, of course, Sameer is a very strong man, and he will not be bogged down by all this noise and nonsense. So um, that's one thing. The second thing is I just played that audio recording. बहुत देर से ये recording थी. Unfortunately for me, I was not able to find it. Second, जब आई थी उस time पे, to be very honest, I get many such recordings, guys. हर किसी recording पे obviously you don't want to believe. You want to kind of take your time to, you want to kind of soak it in. इस वाले recording को अंदर मैंने, I did not go through the entire thing, and I missed this piece. अगर ये मैंने पहले सुनी होती, I would not have stopped myself. मैंने आज I was no plans to do a live. I was actually out क्योंकि आज करवा चौथ था. We were at friend's place. We were waiting for the moon. But while waiting, again, मेरा आधी से ज्यादा मेरी लाइफ इज गोइंग अराउंड सुशांत ओनली. वहां बैठे बैठे भी आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट, ये कुछ रिकॉर्डिंग्स के बारे में सुन रहा था मैं, एंड आई हैपन टू बम्प इनटू दिस रिकॉर्डिंग जहां पर I was like, I could not even wait at my friend's place. I really wanted to come live, or I really wanted to bash this idiot, where Ganesh Hivarkar is calling Sushant and he's using the words, the C word for Sushant. And the moment I heard it, I was like, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा. अब मेरा बस हो गया यार. जिसकी वजह से इस इंसान का घर चल रहा है फॉर द लास्ट 1 year. मुझे नहीं पता उससे पहले ये क्या कर रहा था, कहाँ था, जिसकी वजह से इसका पूरा घर चल रहा है. Can you confirm ये कब का है ये recording? This I got it somewhere in end of April, beginning May. Is it possible for you to forward that particular thing? No, I will only forward it to Sameer, and through them I will forward it to CBI. I'm not going to forward it to anybody. Okay, right. That's the best Yeah. thing to do. Yeah. Correct. I mean, I'll tell you something. I went to Fair his enough. live. I went to his live 2 days back. I basically why I went was I was hearing on YouTube that this person was saying, let us support Bollywood stars like Geru Khan, Sulman Khan, Canadian Kumar की सूर्यवंशी को support करो. Who knows that ये हम ऐसे सारे उनको support करेंगे तो बॉलीवुड का एक भी बंदा अगर आके सुशांत को support करेगा तो एक के बाद एक सभी बॉलीवुड वाले आके सुशांत को support करेंगे. सही में ये महान आत्मा को मैं सही में मतलब मेरे पुराने घर में पुराने चप्पल बहुत पड़े हुए हैं, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा कौन सा चप्पल यूज करूं. इस पे ऐसे लोगों पे पुरानी चप्पल भी मैं एक विभोर आनंद है और दूसरा ये गणेश, इन दो के लिए मैं सिंपल बात करूंगा. इनके ऊपर तो मैं अपनी फटी हुई चप्पल भी ना मारूं, बिकॉज वो मेरी फटी हुई चप्पल की भी बेइज्जती होगी. और आज मैं वही बता रहा हूँ, मैं ये कोई 1.5 या 2 घंटे पहले की बात है बॉस, जब मैंने ये क्लिप को ध्यान से सुना. उसके बाद मैंने ऑब्वियसली 2-3 लोगों से बात भी करी है, जो कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व भी थे या जिन लोगों से थी. और ऊपर से वो कहते हैं ना, टाइमिंग की बात होती है. इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग. समहाउ नितेश राणे ने जब ये लिखा, ट्वीट किया और मेंशन किया, तो मुझे एकदम से याद आया कि बॉस ये वाली वही रिकॉर्डिंग होगी
जो ये मेरे पास भी आई थी, और जब मैंने ये सुना और इसके अंदर बाकी सब चीज़ों को छोड़ते हैं, 2 चीज़ें हाइलाइट थी मेरे लिए, बाकी भी हैं, व्हिच आई विल टेक फुल परमिशन, अभी परमिशन तो है ऑब्वियसली, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट, बट आई विल प्ले देम एंड टू एंड सबके लिए जब वो टाइम होगा। अभी के लिए जो 2 चीज़ें जो मेरे लिए हाइलाइट हुई थी, फर्स्ट चीज़, इसने सुशांत को जो सी वर्ड यूज़ किया, वो तो सबसे ज़्यादा मेरे लिए इरिटेटिंग और सबसे अनोइंग था। दूसरा जो मेरे लिए हुआ, इसको 2 से ढाई करोड़ रुपए चाहिए थे फॉर सम पिक्चर्स जो ये फिर एक्सपोज़ करेगा, और उसके बाद ये 2 ढाई करोड़ से ये कहीं पर 1 या डेढ़ लाख तक आ गया कि मुझे 1 या डेढ़ लाख रुपए दे दो। तो बेसिकली ऑल अबाउट मनी, ऑल अबाउट मनी। शेम ऑन दिस सो कॉल्ड फ्रेंड। अरे आई अरे स्वेयर। वरुण भाई, इसने तो वरुण वरुण अर्नब वरुण गोस्वामी एक का नंबर सेकंड, लीक कर दिया। अर्नब गोस्वामी का नंबर इसने लीक कर दिया पैसों के लिए। एक सेकंड, एक सेकंड, सचिन एक सेकंड, वरुण, in the backstage, this spineless idiot Vishruth is abusing me. Can you please kick him out? यार इतने लोग इस कैंपेन में। Vishruth Shah Who, ma'am? Gada. Who is abusing you, ma'am? Not recording, let Gati speak. Vishruth Shah Gada. I'm taking care. No, you don't have to take Block care कर of दीजिए वरुण जी, block him. Yeah, seriously man, यहाँ पर ऐसे लोग आ गए ना। गधा कहीं पे अलाउड नहीं है ना, इसीलिए यहाँ पे आ जाता है। इसकी तो मतलब अभी बैंड बजनी बाकी है, देख लेना। He abuses me everywhere and this is ये गणेश की तरह, इसको भी ना एक्सपोज कर दो एक बार। ये बॉलीवुड का सपोर्टर है क्या, शाह जो है? Has to be, ये has to be, has to be. I Otherwise, don't think he is वो कहते हैं ना, I think an overgrown, सीरियल ऑफेंडर है ये। yeah, he's an overgrown kid. I don't know what's wrong with him. इसको मैंने बहुत ट्रस्ट किया यार, इसके साथ I people used to think of him as a very wrong bad guy, but I trusted him a lot initially. मैं तो बहुत लोगों पे ट्रस्ट किया यार, साला गणेश से लेके विशुद्ध से लेके सब लोग, but the way this guy has turned out to be is also a pain right now. And again, ट्रस्ट आज के डेट में बेकार है सर। विश्रुत इज अ गटर है, गटर। नहीं, trust, my God. आप जिस पे ट्रस्ट करने जाओगे वो आपके पीठ में छुरा भोंकने की कोशिश करेगा। Exactly. Absolutely. आपको मैं एक छोटा सा आप सबको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कहते हैं ना, 2 फ्रेंड्स जैसे बात करते हैं कैजुअल, फैमिली, किड्स एंड ऑल। उस एक कन्वर्सेशन के अंदर समहाउ इसने अपना बताया कि व्हाट, मैं तो ऐसा हूँ, ऐसा रहता हूँ, ये मेरी कार है। और मैंने भी इसको उस टाइम पे ना, हम वीडियो कॉल पे थे एक्चुअली, एंड आई वाज आल्सो वॉकिंग अराउंड, एंड मैंने कहा ये देख, दिस इज व्हाट, दीज आर माय कार्स एंड ऑल दैट। जैसे नॉर्मल बात करते हैं कि भाई तू क्या करता है, तू कैसे चलाता है, तू कौन सी कार, ऐसे हमने बात की। The next 1 week के अंदर there were couple of people who said, "Oh Varun, you have this particular car. Oh Varun, where you drive? Did you get money from the campaign?" और मुझे लगा बॉस ये कहाँ से आया, ये तो आई नॉर्मली डोंट इवन टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग्स विद एनीवन। मैं पर्सनल लाइफ में क्या कर रहा हूँ, मेरा प्रोफेशनल करियर क्या चल रहा है, मुझे क्या लेना यार। That बट is इस गधे के correct. साथ मैंने शेयर किया ऑन अ वेरी पर्सनल लेवल, बिकॉज I've spoken to him, I've spoken to his wife, I've said hi to his daughter. I had great respect for this man. He has lost it, and he's not even lost it. He's continued to screw it up more and more every single time. पता नहीं इसको क्या चाहिए लाइफ में। Again, there are so many people. क्या करो यार? I mean, this is not why we are here. This is not why we are. Thank God I did not meet him, Varun. I'm in Mumbai right now. ये मुंबई नहीं है भाई, ये तो हम विश्रुत की जो बात करें वो तो ऑस्ट्रेलिया में Not बैठा है। about Vishruth. I'm in Mumbai. I had come for this अच्छा, Sushant thing only. मैं अच्छा हुआ वरुण I भाई, didn't meet him. मैं विश्रुत के बारे में एक छोटा सा कमेंट करता हूँ। It was better if Vishruत Shah would have sent his parrot Coco into Sushant Singh Rajput movement rather than him coming. That Coco would have contributed a lot than this guy, believe. okay. एक मिनट। Varun, can we start the Yes, discussion please. again? Yes. One second. Let me just read couple of messages. ये कोठा स्टोरी है, ये बहुत बड़ी गणेश की सपोर्टर है। पहले तो मैं इनको सुन लूं एक बार। वरुण सर, गणेश दादा घुटा है, घटिया है मान लिया, लेकिन वो सुशांत सर के लिए इतना कुछ किया भी। ओके, कोठा स्टोरी। पहले तो आपको मैं इतना क्लियर कर देता हूं
मैंने आपको भी बड़ी बार यहाँ सेशन पे देखा है, आप बहुत you try to reach out to for me to make amends or friends with Ganesh. कोठा स्टोरी, द पॉइंट इज, ये जो रिकॉर्डिंग मैंने अभी सुनाई थी थोड़ी देर पहले, आप इस सेशन के पहले चले जाना, आपने सुन लेना। ही इसने सुशांत को सी वर्ड सुशांत के लिए यूज किया है, एंड दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी। अनफॉर्चुनेटली मेरे को इतना टाइम Absolutely. लग गया, इस वर्ड को अगर He मैंने doesn't have any right to do that. तो No, no, मैं no. इसको फोड़ देता। बट प्लीज अब मैं थोड़ी देर चुप रहूंगा, प्लीज। यस, गो अहेड रिजॉय, व्हाई डोंट यू गो नेक्स्ट एंड देन वी विल गो इन अ सीक्वेंस। Okay. Thank you, Varun. I'll cover a few topics. One, probably give me the next 5 minutes at least. Sure, sure. Number one. Again, it's related to law. Came to know that this Chunky's daughter is not coming for the third time today. Now, if NCB calls her for the third time today, and if she decides to skip it, so अभी last 2-3 दिन में जो development हुआ, which was a very planned counter attack, I would say, by the opponent, by the this Ananya and Shah Rukh Khan and PR all together. I call them opponent. So whatever they have done the last 2-3 days, whatever stories, whatever person they have come into picture, fabricating, coming up with wrong stories, that will be proved in the days to come. But abhi mere ko just the thought came in, that's why I'm opening it up in this forum, that why did she suddenly refuse to come to the NCB office? She decided to skip today. On is NCB given a soft corner or soft issue on her that okay, you can come or you can come on the next day? ऐसा कुछ है, मतलब provision है कि she's being called and then she decides that I will not come today, I will come 2 days later. So ये एक चीज था मेरे दिमाग में, थोड़ा सा बैठ नहीं पा रहा है. I'm not able to give an answer to myself क्यों ऐसा हुआ. Number one. Number two, coming to this Ganesh, as I told you, Varun, long time back, you had bought Ganesh as well as you had bought a lot of people, not only Ganesh, a lot of people, of which 90% backstabbed you, and probably 10% were good. And one of them was Ganesh, another mate. I'm forgetting his name. Can you tell me the name? Ankit. There was one. Right. Now I have told you in this forum that I had a discussion. I had met Ankit in Delhi and we had dinner together. It was 11th November 2020. And my purpose was not to get some fame, but to understand, since he had been with SSR के बारे में जानने का as a person, because I can bet people started to know more about SSR after his death rather than before his death. So those who were very much close to him, so I was trying to understand him. Now I'm in touch with him. Let me be very honest with you, because I've never given you any false information or etc. I'm still in touch with him. He's in Kolkata. He's in south part of Kolkata. I don't know, he may be like Ganesh, benefited from the SSR. I'm not denying that fact. Okay. But at the same time, he told me a lot of informations about this guy Ganesh and how much money he has minted out of this thing. He must have minted also, but what information which I got from him, then he said that iska kuch hone wala nahi hai, CBI knows everything. अभी जब तक वो पॉलिटिकली वहां से ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा, ये सामने नहीं आएगा दादा, आप लड़ते रहो, लेकिन ये समय लगेगा. This is what. Even the pujas also, he told me that why don't you come to this pandal? I said no, COVID के लिए हम अभी नहीं घूमने जा रहे. So this is the second part. Third part which I want to discuss about it is ये जो any lawyer here would have given a better perspective to it. Now we know Aryan is in jail. He's not taking food regularly. Okay, so he's surviving on biscuits and some other stuff, and his health is also not good. This has also been mentioned.
Now, if tomorrow the bail is again rejected, which it will be, now will there be an attempt? Can there be an attempt being made on the health ground? A petition being given that he should be hospitalized, or he's not, he's going through a lot of convulsion, etc., etc. करके एक PR is excellent in making these type of stories. So ये I always think from the opponent side. Opponent इसका next action क्या कर सकता है? Next 5 actions क्या probable actions क्या हो सकता है? So I believe that this can on medical ground, because ये एक ऐसा ground है उसमें से the judge gives a very soft corner. In many cases, it has been seen in the past. So these were my 3 observations, and thank you. Probably I have finished it within 5 minutes. Right. Okay. First of all, Vishrut, if you're watching, enough of this. Stop. And now, officially, I'm telling you, आज तक नहीं था, and you were always confused, and you were always asking me, abusing me that I have blocked you. Till today, you were not blocked. Today, you're blocked, and I'm telling you on your face. So stop calling me because you're blocked on WhatsApp as well. So अब आज के बाद you won't be able to call me even on my phone because I've had enough of this. जितने भी लोगों के साथ मैं देख रहा हूँ, because I cannot stop you from watching. YouTube. आप YouTube पे देखें. आप हो सकता है शायद chat पे abuse कर सकें. दूसरे लोगों के platform. You become the next Senthil is how I see you. Go ahead. औरों के sessions पे जाओ. Abuse me. Abuse others. Because I think that's all what you can do right now. And I am really not bothered right now. Varun, I want to add this on the record, and I am going to file a complaint that I did not even take his name, and he came here, started abusing me. So no one's calling him, no one's talking to him, and he's just constantly abusing. So I just want that to be known to everyone. नहीं आज तो हो गया यार. अब सबका हो गया यार. मैं एक एक करके गणेश, विभोर, वरुण भाई मैं Senthil, all आपको these guys. एक छोटा सा सजेशन देना चाहता हूँ. Currently, Samir Wankhede ji is currently he is involved with other stuff क्योंकि बहुत सारा उनको टारगेट किया जा रहा है. So what you send the recording to him, no problem. But आप ये भी कर सकते हो कि आप डायरेक्टली सीबीआई को अगर आप अप्रोच करना चाहते हो, डायरेक्टली सेंड द रिकॉर्डिंग टू their email. I will. That I will definitely do. I've already done something in the last couple of months as well, which goes directly to the CBI. उनके email IDs and सब कुछ है. The reason why I mentioned through Samir is through Samir it will go directly to certain people. तो और एक चीज मैं सबको एक बार बता देता हूँ, बहुत क्लियरली बता देता हूँ यहाँ पर. Even though there is so much nonsense going around Samir, but Samir is one strong warrior. ऐसा इंसान मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा, and I really doubt I will ever meet anybody like him. Even though all this nonsense is going on, he is still keeping that brave front, and he's still chatting, talking, casual, normal, because he knows he has done nothing. Again, not to compare him with everyone or anyone actually, but एक चीज बड़ी बिल्कुल क्लियर होती है बॉस, जब तुम सच होते हो, तुम्हारा कुछ छुपाने के लिए नहीं होता, then you are absolutely normal and you don't even care. Even though what has happened to Samir, these personal takes, I'm sure it is definitely rattling a little bit of rattle to nahi kahunga, it's bothering the family and the normalcy in their life, but he is as jovial, as candid, as casual. जैसे वो पहले थे वो अभी भी वैसे ही हैं. तभी मैंने बताया, जब मैंने ये कुछ लोगों ने मुझे ये बकवास सी एक स्क्रीनशॉट भेजा ऑफ द ट्विटर, समीर ने मेरे को उसका दिस प्रेस रिलीज अपनी भेज दी इमीडिएटली that this is what I'm anyways gonna. So मुझे अभी ये भी नहीं पता कि वो प्रेस रिलीज पब्लिक हुई है कि नहीं हुई है, but you know what, just because I got it from him, I take every word from him that this is as open as possible because he's a very open man. So मैं एक बार फिर आप सबको वो दिखा देता हूँ, so that you all see it and you can read it. This is a press release against that stupid picture that has come out. और बिल्कुल क्लियर लिखा है कि किस तरह से बकवास हाईलाइट करके लिख रहे हैं ये लोग कि समीर दाऊद वानखड़े का यहाँ से शुरू हुआ फर्जीवाड़ा based on his ex-wife. और इसके अंदर, this is the press release. I'm going to read it one more time. In this context, I would like to express
that my father, Sri Dhyan Dev Kachruji Wankhede, retired as Senior Police Inspector of State Excise Department, Pune, on 30th June 2007. My father is a Hindu and my mother, late Mrs. Zahida, was a Muslim. I belong to a composite, multi religious, and secular family in true Indian tradition, and I'm proud of my heritage. Further, I married Dr. Shavana Qureshi in 2006 in a civil marriage ceremony under the Special Marriage Act 1954. Both of us divorced mutually through civil court under the Special Marriage Act in the year 2016. Later in this year, 2017, I married Srimati Kranti Dinanath Redkar. The publishing of my personal documents on Twitter is defamatory in nature and unnecessary invasion of my family privacy. It is intended to malign me, my family, my father, and my late mother. The series of acts of Honorable Minister over the past few days have put me and my family under tremendous mental and emotional pressure. I am pained by the nature of personal defamatory and slanderous attacks by Honorable Minister without any justification. This is his press release, and the sad part is he had to, I'm sure, Samir is anyways an amazing human guy, a human being, but uh, he mentioned honorable minister couple of times. Shame on True. this minister, जिसको अभी भी ऑनरेबल बुलाया जा रहा है. मैं यूजलेस वही गाय. मैं वही बोल रहा था। ऑनरेबल, मतलब इमेजिन करो ऐसे घटिया आदमी को ऑनरेबल भी बोल दिया समीर वानखेड़े। ट्विटर पे मतलब ये तो मारा उसको, वही बाकी है। एग्जैक्टली, मारना ही चाहिए ऐसे. ये नवाब Anyways, मलिक को बट आई एम समीर वानखेड़े वरुण, में भ्रष्टाचारी दिखाई देता है, लेकिन परमवीर सिंह के बारे में बताया one ना by कहाँ one, पे one है? by one, one by one, guys. Let's go sequence. Rejoy, I think put some points, and एक मैं अंकित के लिए सिर्फ एक बार फिर मैं रिपीट करूंगा. As much as I have known अंकित के लिए तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इसी वजह से अंकित अपना बैक स्टेप ले लिया उसने, when he got to know the real face of Ganesh Varkar. He never wanted to be in the same frame. Uh, बहुत बार भीख मांगी, एंड लिटरली भीख मांगी इज द राइट वर्ड राइट नाउ आई एम गोना यूज. गणेश ने कि किसी तरह मुझे अंकित के साथ इकट्ठा सब लोग देखना चाहते हैं, आप उसको बुलाओ, आप उसको कहो मेरे पास आ जाए, मैं उसकी टिकट दूंगा, मैं उसका प्लान करूंगा. बोल शेट, ये सब कुछ मेरे साथ बकवास करता था, और मैं इसकी कोशिश करता था कि किसी तरह अंकित इसको समझाए. पर अंकित ने भी मुझे कई बार कहा कि भैया मैं इसके साथ नहीं रह सकता, इसका मुझे इंटेंशन ठीक नहीं लगती. एंड दिस इज व्हाट was the fact of matter was, जो सुशांत तक को गाली दे सकता है वो क्या करेगा और कोई. So absolutely, In Vijay. fact, in Yeah. fact, Varun, the last time when he met me, he wanted to go back to Mumbai to collect all his belongings, which was in Ganesh's house, because he was staying in Ganesh's house. Yeah. So I told him that yes, okay, no issues, you go there, but he will try to convince you to stay back. He Yeah. said, Vijayada, no way, I'm not going to stay with him anymore. And then he comes back to Kolkata. So I'm saying, I'm not saying that he is also very clean. He also might have taken some advantage of the situation. But if you compare with Ganesh, he's far, far better. This much I can tell you. Absolutely. This Agree. is my opinion. This is my opinion. I agree. I agree with that. Yeah. Thank you. And the Jay. remaining 2 points, please throw. Varun, please throw your light on the remaining 2 points. So one thing, I forgot the first one, but the other one around this Chunky Pandey's daughter, right? See what I heard, and also I'll get more details. I don't have much details, but of course from my own perspective, I know why this would have happened. They definitely have to plan. They definitely have to strategize the next steps. वहां पर जो 2 सेशंस हुए हैं उनमें क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके क्या आंसर्स दिए गए हैं, उनको अब कैसे ट्वीक किया जाए. Only the NCB knows. Yeah. Right. So these guys, Ananya will sit down with the lawyers and experts to prepare those answers. But what they've put in front of the NCB and what they've done in front of the different agency is basically, that she's an actress, she's a busy actress, and she had prior commitments. So just because of those prior commitments, she cannot come and make it to this round.
But one thing which I really cannot I mean, yahan par I also have commitments, I have doctor appointments, I have other things, other businesses that I have to take care of. But if there is an agency that has called me, I would reschedule everything for that. But Correct. by not doing it, they are proving the point that they need more time to prepare their answers, and that's what they're doing, pretty much. And the last one is that on medical grounds, if they now plan to release Aryan, or submit a petition to the court that since he's not well, he's not having food at the right time, he's having congestion, all types of nonsenses, and then and try to get a bail, is that possible? Only a Yes. lawyer can tell. Only a No, no, lawyer can tell. very. Huh. I think our lawyers have already said it multiple times. And ये medical grounds. I think if I remember correctly, एडवोकेट शरण जी ने बड़ी बार इस ऐसी चीजों के बारे में बताया है. आई थिंक व्हेन वी टॉक्ड अबाउट व्हाट वाज हिज नेम, वाजे, के मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर तो दे कैन, दिस इज अ प्रोविजन इन आवर लॉ ऑन मेडिकल Okay. ग्राउंड, बट दैट हैज टू बी प्रूवन. It cannot be that आर्यन खान एकदम से आते हैं और कहते हैं आई एम नॉट फीलिंग वेल, एंड they get out. They have to be taken to a hospital, they have to be validated, उनका चेकअप होगा, सब कुछ होगा, और उसके बाद if it is proven that yes, he is not keeping well and he has, but I really doubt in this Aryan's case. He's a 24-year-old chap. ये Sorry. ये फालतू की बात होगी अगर इसको भी इस टाइम पे हार्ट प्रॉब्लम हो जाए, या इसको भी कोई I'm not saying heart burning, constipation, all these type of not having food, like all these. Heart तो बच्चा है अभी, मतलब so called बच्चा है. नहीं, इनके बच्चों को सब कुछ हो जाता है ना. कहाँ का बच्चा है जी? इनके बच्चों नहीं, को इसलिए मैं बोला so called बच्चा, बिकॉज़ बच्चा का डेफिनेशन ही चेंज हो गया. आर्यन पकड़ने के बाद बच्चा डेफिनेशन also in the dictionary has changed. नहीं रिजॉय जी, आप क्या बोलना चाहते हो? उसको अगर 23 साल का बच्चा है तो 51 साल का वो भी बच्चा है. नहीं मैम, डोंट टेक मी ऑन अ रॉन्ग फुट. नहीं, वो भी उसी का बात यही कर रहे हैं. They are also on the same मैं track. वही बोलना चाह रहा हूँ कि अगर कल उसको बेल नहीं मिला, प्लीज अंडरस्टैंड सर, अगर उसको बेल कल नहीं मिला, जो मेरे को भी लगता है नहीं मिलेगा, then they will use different ways to get bail. either सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, नंबर 1, और एक प्रोविजन जो है ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, बिकॉज अभी से लास्ट वीक से कहानी शुरू हो गया है पीआर का कि ही इज टेकिंग ओनली बिस्किट्स, ही इज नॉट टेकिंग फूड फ्रॉम द फूड. बाहर का एक बार 2 बार आया है, शायद उसको अलाउ किया गया है या नहीं किया, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट कंप्लीटली, बट ये खाना ठीक से नहीं ले रहा है. ये कहानी अभी शुरू हो चुका है. सो उसको बेसिस रखते हुए दे कैन अप्लाई दैट. इसकी जो मेडिकल और हिस्ट्री निकल के आएगी और भी बड़ा कुछ आएगा. आई एम श्योर इट विल कम आउट. बट अरे भैया रिजॉय जी, इन शॉर्ट बोलना चाहते हैं उसको बवासीर हो जाएगा, इतना है ना, होने दो ना. बवासीर क्या प्रॉब्लम है? बवासीर हो चाहे पाइल्स हो, जेल में सड़ेगा वो. भगवान करे वही हो. इमेजिन आज की हमारी. ऑलराइट, थैंक यू सो मच रिजॉय. ऑलराइट सचिन, प्लीज गो अहेड. आज लगता है बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते हैं, and I'm not able to keep them on screen, so please once you're done, please move so that I'll keep it very short. अभी देखिए, जैसे समीर वानखेड़े जी ने एक कमीने और निकृष्ट आदमी को ऑनरेबल मिनिस्टर बोला है, तो मैंने भी उसी तरह एक कमीने और निकृष्ट लॉयर को जी बोल के बुलाता था. तो हमारे संस्कार ऐसे है, हमारे माता पिता ने संस्कार ऐसे दिए है कि आपके सामने कितने भी नीच और निकृष्ट लोग हो, उनको भी जी से बोला जाए. इसका गलत ये मतलब नहीं रहना चाहिए कि हम किसी की जी हुजूरी कर रहे हैं. इट इज जस्ट ट्राइंग टू, आदमी कितना नीचे गिर सकता है, तो थोड़ा ऊपर उठाने के लिए हम जी बोलते हैं, बस, और कुछ नहीं. Correct. All right. Anything else you want to say, Sachin, before I move to Amar? Just forward that audio to CBI. Yes, I will. And other agencies, if possible, file a grievance as well. It would be better. ठीक है. अभी इस सेशन के बाद ही I'm gonna sit and do all the things. I'm glad I was able to find all the recordings. इसको तो मैं अब तो नहीं मैं छोड़ूंगा. Sorry to say, but सुशांत को कोई अब्यूज करेगा तो वो तो नहीं बचेगा बॉस. बाकी सब चलता है. एसएसआर का कैसा दोस्त है? भरोसा किया? दोस्त नहीं है भाई, दोस्त नहीं है. अब I can very clearly say he's not a friend. He is दोस्त के नाम पे गद्दार निकला ही. हाँ, इसने बहुत ही ज्यादा किया. Anyways, thank you. I will do that, Sachin. Thank you so much. All right, Amar, please.
Hi, Varun. Hello, everyone. Varun, I have just 3 points. हाँ जी वरुण, टू बी ऑनेस्ट, मैं स्टार्टिंग में बॉलीवुड के अब 6-7 ग्राम्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड था नहीं. बट द वे दे हैव हिट समीर वानखेड़े अंडर द बेल्ट, राइट. मैं पहली बात, मुझ पर ट्रस्ट ना करें. एज पर द लॉ अपनी रिसर्च करें. सब कुछ इंटरनेट में अवेलेबल है. और कुछ सोर्सेज जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ वो मुझे कहाँ से मिले, मैं आपको वो भी कर दूंगा. सो प्लीज डोंट ट्रस्ट मी ब्लाइंडली और एनीवन. तो मैं ये 6-7-8 ग्राम में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूं, टू बी ऑनेस्ट. ऑन द अदर हैंड, अगर आप एक जर्नलिस्ट को देखेंगे, फे डिसूजा, उनमें 2 सीनियर वहां पे और भी गेस्ट आए हैं जो इस फील्ड में हैं. आपको जान के हैरानी होगी, लास्ट 2020 जब से लॉकडाउन हुआ है, हमने 31,000 करोड़ के ड्रग्स पकड़े ओवरऑल, विच इज और आपको ये होगा, जब हम सुशांत की आवाज उठा रहे थे, जो चीज हमको मिस हुई, 1,000 करोड़ के ड्रग्स मुंबई पोर्ट में भी पकड़े गए हुए. और अगर आप ये फेज रिव्यू का इंटरव्यू देखेंगे विद 2 एक्सपर्ट्स, आपके खुलासे ऐसे होंगे जो आप देख सकते हैं. ऑन द अदर हैंड, मैं ये बात मानता हूं कि बहुत लोगों ने कहा कि ये एक छोटा सा मामला है, बट अगर आप एक एनसीबी ऑफिसर, चाहे वो 2 ग्राम हो, 4 ग्राम हो, उसको अंडर द बेल्ट हिल्ट करेंगे, इसकी फैमिली पे क्वेश्चन उठाने का हक किसने दिया? मेरा क्वेश्चन ये है. आप लॉ की तरफ बात करेंगे, ठीक है, एज पर द लॉ जो उन्होंने सेक्शन फाइल किए, मैं सेक्शंस में नहीं जाना चाहता, मेरे पास सेक्शंस है वरुण. आर्यन खान को मैक्सिमम 1 साल की सजा हो सकती है, और एज पर द लॉ, इवन आपके लॉयर भी है कि किसी को भी अगर जो भी केसेस 7 साल से कम होते हैं, उनके अंदर बेल मिलती है. बट क्या सबको बेल मिल जाती है? कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास 1-1, 2-2 साल में जेल में सड़ रहे, उनके लिए किसी ने आवाज उठाई? आज तक किसी ने नहीं उठाई, बिकॉज आज वो है. दूसरा, अरमान कोहली का एक नाम है, उसके पास ज्यादा लिंक्स पाए गए हैं जो नार्को, जो इनके ड्रग रैकेट्स के साथ. उसके बारे में कोई क्यों नहीं बात करता? इवन मीडिया डजंट टॉक अबाउट इट. कैन यू टेल मी व्हाई? कोई नहीं करना चाहता. सेकेंड पार्ट और द लास्ट पार्ट, वरुण, आई जस्ट वांट टू वो है, उसको बेल मिले या ना मिले, वी आर विद समीर वानखेड़े, एंड टाइम एक्सपोजेस एवरीबडी. द वे they have hit him below the belt, this means there is more to the story that they don't want to be, that it comes out. Thank you, Varun. These are two, three points. Please watch Fate D'Souza interview. They have mentioned how many drugs have been released, how many, what are the cartels that have what DRI and other agencies have done, and what is the source of the drug. So please watch that interview with Fate. Thank you, Varun. Thank you, Have a boss. great day. Yeah. You too. Thank you. I'll Thanks leave. always. Yep. All right, Ayush. Before Ayush, give me 1 second. Caroline, can you please specify what is the question around his extension? As far as I know, what I've been told by Sameer himself, his extension is due in December. December tak he has been extended. December May he is again. Let me just clarify. December is when Sameer will file for the next extension for his role. And he is very confident. I mean, the last time we spoke, he was very confident that he will still get an extension. But looking at how things are progressing right now, this is like a conspiracy going against him. So I don't know how things will shape up. But last time Meri jab iske bare mein hui thi, he is there. He's going to file his extension in the month of December of this year for the next 6 months. And he was very confident at that point of time that he will get an extension. So I was very scared. I always feel I represent a lot of warriors and a lot of people who are always constantly looking for information, the right information. So I did raise this point directly with him. I asked him very clearly, Sameer, this is what I've been hearing. What is your take? He told me very clearly, Varun, December May I'm going to file it. And uske baad, I'm very confident I'll get it for another 6 months. And this is how he'll be extended. अब क्या सिचुएशन होती है बेस्ड ऑन व्हाट हैज नॉनसेंस हैज हैपेंड नाउ माय एनालिसिस अराउंड दैट इज अगर उसके ऊपर किसी तरह की ये एक इन्वेस्टिगेशन लगा ली गई उसके ऊपर या किसी तरह का उसको एक किसी भी तरह का एक क्लेम करके उसके ऊपर एक वो क्या बोलते हैं फरलो दे दिया गया उसको कि व्हाइल यू आर the investigation is going on, you are out of your service or duty and all that stuff, then of course extension also becomes difficult. But I am very confident, very confident that will not be the case and he will come out with flying colors. Okay, now I understand. So
cause in the media it says he's already got that extension. So yes, he got that extension till December is what I'm going to assume. But he very clearly, and I'll read his message. Actually, you know what? While I want to really quash this, let me actually quickly tell you what he said. Okay. Okay. So this is कहाँ पर है ये extension? I very explicitly. Oh, I'm again typing in the wrong section. 1 second. Okay. He said we'll ask again. We'll ask for extension in December. So मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा था कि ये 6 months की extension का क्या चल रहा है? And he say, and I very clearly asked, are they planning to move you out? Is that a normal process? तो उसने समीर का बिल्कुल clear answer था, let's see, it's a normal process. We'll ask for extension in December. And that's what he said, that he's very confident. So in December, he will again ask for his extension, and then we'll see. All right, let's move on. Ayush, क्या कहना चाहते हैं? Please go ahead. आयुष कुछ कहना चाहते हैं? Okay, I don't know. Looks like you're on mute, so I'll move to. Let me add a small point. Please. ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट नवाब मलिक सोई मंत्री का बाल भी नहीं उठा सकते, because पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है. एनसीबी सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंसी है. ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते. They cannot do anything. Okay. All right. Let me Sachin, let me just finish off with all of them, and then we'll talk again. Yes, common man. After a long time, hope you're doing well. Hey, Varun, I'm Yes, fine, thank you. How are you? Yes, I can hear you loud and clear. Good. नहीं यार, बस ऐसे ही थोड़ा break ले लिया, you see. Yeah, but I was regularly आप लोगों को देखते रहता हूँ, and बहुत कुछ भी. I'm watching all the drama also. सास बहू तो बंद कर दिए हैं, तो क्या करें अब? बाकी के channels भी देखते रहते हैं ड्रामा के लिए. किसको चाहिए? Sorry, this is sarcasm. If you don't get it, explain कर दो. I'm just being sarcastic. Serious मतलब. Okay. नहीं, I'm just watching actually यार. और ये जो नया है, जो है ना, whatever उसका जो कुछ भी उसका नाम है उसके बेटे का और उसका, yeah, interesting man. पहली बार कुछ ऐसा कुछ हुआ है, and very 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 nicely done. और another thing is that कि ये जो so called friends है, ये बहुत पहले से यार सस्पिशियस था एकदम, एब्सोल्युटली सस्पिशियस. यू सी, अचानक से बोलते ना कहाँ से लोग आ रहे थे, एंड बोल रहे थे कि और कोई नहीं, सिर्फ मैं ही एकदम थ्रू सोर्स हूँ, एंड दे वर लाइक ऑल ऑफ अ सडन लाइक इन्वॉल्व्ड इनटू इट, संक इनटू इट, कि सब कुछ मुझे ही पता है और किसी नहीं पता है, और सबसे ज्यादा मार मैंने ही ली है और किसी ने नहीं ली है, सो आई एम द ओनली थ्रू सोर्स. और फिर बाद में ये लोग थोड़ा बहुत पब्लिसिटी मिल जाता है, एंड दैट्स इट, उनकी असलियत सामने आ जाती. पर इनकी तो बहुत पहले से कुछ डाउटफुल था भाई, 50-50 था. पता नहीं करे हर आदमी कुछ इंसान, let me make it non gender specific. Okay, इंसान कुछ ज्यादा ही परफेक्ट हो जाता है ना, बोलता है कुछ ज्यादा ही सीधा है, इसी तो गड़बड़ है यार. ऐसा कोई इंसान है नहीं जिसमें थोड़ी बहुत भी ना खोट निकले. ये एकदम परफेक्ट स्क्रिप्ट चल रहा था कि सब कुछ बोलते ना, बेस्टीज ऑफ बेस्टीज, सब कुछ जमा नहीं. एंडिंग में उसने खुद ही नहीं बक दिया. सो देयर वी गो. I'll use that, देर आए दुरुस्त आए, पता तो चला कम से कम उसके बारे में. But yeah, it's good actually. It's nice to know. अच्छी बात है कि बंदा एंडिंग में हकीकत बाकी रहता है, वो या हकीकत सामने आ ही जाती है किसी न किसी से. और I'll tell you something. I keep on telling this. I speak to a few people offline as well, and I say one thing. एक दिन तक एक डिफरेंट इमेज, एक मुखौटा पहन के बैठ सकते हो बॉस. एक दिन तक आप दिखा सकते हो, और यू कैन प्रिटेंड टू बी समबडी एल्स. इवेंचुअली द ट्रुथ जो होता है ना, जो तुम्हारी असलियत होती है, वो बाहर आएगी. और मैं यहाँ पर मैं यहाँ बैठ के वही अपना ना सिर हर बार पकड़ता हूँ यार, मेरे को इतने लोग कैसे टकर रहे हैं,
ऐसे ऐसे लोगों को मैं लाता हूँ, फिर मैं उनको एक तरह से एक ऐसा पोडियम दे देता हूँ, वो अपने आप को इनविंसिबल मानने लग जाते हैं। बॉस अभी तो मैं भी नहीं पहुंचा, मैं भी नहीं सोच सकता कि मैं इनविंसिबल हूँ, कभी भी कुछ भी गलत हो सकता है। बट these guys have a different kind of thought process. They will think they are the god, और उसके बाद असलियत जब दिखती है, इट रियली ब्रेक्स माय हार्ट कि यार मैंने साला इतना ब्लाइंड फेथ करके, इतना ट्रस्ट करके इनको इतना सिर पे बिठाया, और ये देखो इनकी असलियत। भाई मैं बता रहा हूँ, आज द मोमेंट आई हर्ड दैट ऑडियो, आई रियली रिग्रेटेड कि मैंने उस टाइम पे ये कॉल क्यों नहीं सुनी, और क्यों मैंने उस टाइम पे इसको नहीं किया। आई हैव गिवन हिम लाइक कपल ऑफ मोर मंथ्स, calling his so-called best friend this on a recording. Why do you even realize your whole existence for the whole last 15-16 months was based off this so-called friend of yours? और तुम कह रहे हो कि मुझे उससे बड़ा सुपरस्टार बनना है? जाके पहले ना वो क्या कहते हैं, वो डेस्क के अंदर जाके मुंह धो के अपना, और कहीं पर फिर भी चाहिए कंपेयरिंग हिमसेल्फ विद सुशांत सिंह राजपूत कि उससे बड़ा स्टार बनेगा। आई स्वेयर मेरा दिमाग फट गया इस रिकॉर्डिंग में। वहां किसी फ्रेंड के घर पे, एंड आई वाज लाइक मुझे अभी लाइव जाना पड़ेगा, ये तो मैं छोड़ ही नहीं सकता। एंड सो सिकनिंग यार। भाई अगर अगर चेहरा अगर अच्छा नहीं हो ना, तो कम से कम बातें तो अच्छी कर लिया करो। सही बात You see what I mean? That's my message है ना। चेहरा अगर अच्छा नहीं हो कोई बात नहीं, बातें तो कम से कम अच्छी कर लिया करो। और शॉकिंग मैन, बस इनकी ना हालत मैं कंटिन्यूसली शुरू से देखते आ रहा हूँ, और दिस मोमेंट ना ऐसा लगता है लाइक अपॉर्चुनिस्ट सब जगह पर है। ओके फाइन, और ये जो बोलते हैं ना स्पेशल अपॉर्चुनिस्ट है जो कि कुछ भी करेंगे, क्रॉस द लाइन। ठीक है, तो इस बार ना इनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि हाउ कैन वी टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल कि यार कुछ तो हमारे झोली में कुछ तो गिरे कहां से। यू सी व्हाट आई मीन? सो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट। यप ये नेक्स्ट लेवल क्यों लेके जा रहे हैं, और एक कुछ भी बना के दे देंगे। I've seen this, I think I started with your channel only, और काफी यार तुम्हारे चैनल पे काफी आए, फिर वहां से बहुत कुछ डेडिकेटेड है ना, कोर्ट कचहरी गवाह सब कुछ A to Z बन गए, एंड इट्स बिकम एंटरटेनमेंट। यप तो ये एग्जैक्टली ये भी दिस इज द सेम सिनेरियो कि मैं और कैसे, और मैं कहां से ना कुछ मैं खींच के लेके आऊं, कुछ तो झोली में गिरे। ये डेस्परेशन है यार, ये टोटल। तो इग्नोर इट है ना, ये आज कर रहे हैं, कल ठंडे हो जाएंगे, कल कुछ नवा मुद्दा खड़ा हो गया, फिर से इनकी एक नवी लाइन बना देंगे। एक खुद ही लिखते हैं, खुद ही एक्टिंग करते हैं, खुद ही डिलीवर करते हैं, खुद ही उसको पास भी कर देते हैं और हिट भी बना देते हैं। एग्जैक्टली। सो इसलिए मैं कह रहा था वो सास बहू ना, दैट्स आउटडेटेड है। आजकल इन लोगों को देखो ना, बहुत टाइम पास होता है एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। आई नो। एनीवे, better get back to work. Thank you very much. It's lovely to see you. Thank you. Good to see you. Buddy. Cheers, guys. Thank you. Yes, take care. Yeah. All right, Bye. Tanushree, please go ahead. बोले तनुश्री जी। तनुश्री आप म्यूट हैं। हाँ। तनुश्री चक्रवर्ती, आप अभी तक तो बैठी थी। एक सेकंड बेला जी। हाँ, तनुश्री। हेलो सर, नंदिनी, आपके जय मोदक के साथ आपके लाइव में आए थे 15 अगस्त में, याद है आपको? हाँ जी बिल्कुल। एक सेकंड आप रुकेंगे, मैं जरा तनुश्री से करके मैं आपके पास नेक्स्ट आता हूँ। एक सेकंड। हाँ जी। प्लीज बोले। गुड आफ्टरनून सर। मैं आपके चैनल में आने के लिए मैं वेट कर रही थी कि कब आए, लेकिन आपके लिंक नहीं था, इसलिए मैं आ नहीं पाई आपके चैनल में। बट सर, आप जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, आई कंप्लीटली एग्री। जो कुछ भी आप बोलना चाह रहे थे, या फिर जितने भी लोग हैं आपके चैनल में जिस टॉपिक पर बात हो रही थी, वो सब कुछ बिल्कुल सही है, मैं इसके साथ हूँ। बट सर, क्या कहे, जाने अनजाने में हमसे कुछ गलतियां भी हो गई है। मतलब हम किसी एक लेडी जो है ना, जिसने हम सबको एक साथ लेकर फंसा कर रखी थी, तो हम लोगों ने उसकी चक्रव्यूह में जाकर फंस गए थे। वो यूके में रहने वाली है, पता नहीं सर कि वो कौन है, उसका भी वो नहीं है, और जिस आईडी से उसने आईडी खोलकर रखे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वो उसका रियल नाम भी नहीं है। तो सर, मुझे पता नहीं कि वो असलियत में कौन है, बट उसके साथ पाकिस्तान, सऊदी अरब और दुबई, इन जैसे लोगों के साथ उनका कनेक्शन है, इन देश के लोगों के साथ उनका कनेक्शन है। आप किसकी बात कर रहे हैं? मुझे आप किसकी बात कर रहे हैं?
सर मैं प्रीति रूपल करके एक लेडी है, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। ओके सर हम लोग अगर रिया के अगेंस्ट या सलमान के अगेंस्ट कुछ भी पोस्ट डालते हैं तो प्रीति रूपल हमको हमारी माँ बाबा को धमकियां देते हैं कि ये पोस्ट उठा दे तो अच्छा नहीं होगा। इनफैक्ट हमारा नंबर सब में बांट के हम लोगों को धमकियां दिलाते रहते हैं, अलग से धमकियां मिलती है हम लोगों को। आपने किसका नाम लिया? एक सेकंड फिर से नाम रिपीट कीजिए। प्रीति प्रीति रूपल। रूपल वही ना, वो जो सुशांत के नाम पे गाने गाती है ये? सर पीयू दी सुशीला दी आपके बारे में एक बार बोला था, पीयू दी सुशीला दी भी एक बार बोला था। सर हम लोग इतना डर गए थे ना सर, क्या बोलूं, मतलब हमारा हाथ पैर ठंडा हो गया था जब पाकिस्तान से धमकियां आने लगी। आप प्रीति रूपा की बात कर रहे हैं? हाँ जी हाँ जी, ये सर लवली चौबे के चैनल पे आती है, वही है राइट? हाँ लवली चौबे के चैनल पे जो आती है, लवली चौबे के चैनल पे जो आपको बैठती है, जो अपने आप को गुजराती बोलती है और बहुत सारे वीडियो में डांस करती है सुशांत, ये हाँ सर वही। एक मिनट आंखों में कलर लगा के हाँ तनुश्री पहले एक एक करके बात करते हैं, मुझे क्योंकि ऑब्वियसली मुझे थोड़ा समझ रहा हूँ, मैं समझ गया किसकी आप बात करनी, पर क्या हुआ, इशू क्या है? सर हम लोगों को खुद, सर आप तनुश्री पहले बोलेंगे इसके बाद मैं बोलती हूँ। ठीक है बोले। सर बात ये है कि हम लोगों ने वो जस्टिस के सुशांत के जस्टिस के नाम से एक अकाउंट खोली हुई है और हम लोगों का अकाउंट को उसने हैक कर लिया और हैक करने के बाद हम लोगों के अकाउंट्स में वो आकर खुद इंटर हो गई और हमें भी उसकी तरह तरह की ग्रुप में शामिल कर दिया। मतलब हमें पता भी नहीं था कि हम किस ग्रुप में, बाद में जब देखते हैं तो हमारा नंबर भी उसने पता नहीं कहाँ से ले लिया और फिर भी शायद नंदिनी का नंबर कहीं से भी मिल सकता है, लेकिन सर मेरा नंबर कहीं पर शो नहीं है, लेकिन उसने मेरा नंबर भी ले लिया और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में उसने ऐड किया और कई सारे ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर उसने मुझे ऐड किया। बट जब मुझे पता चला कि वो ऐसे ऐसे करती है तो सर मैं उस ग्रुप से निकल गई, ग्रुप को ही ब्लॉक कर दिया। एनीथिंग मैं उसका अकाउंट भी ब्लॉक कर चुकी हूँ, मेरे पास उसका कोई भी अकाउंट नहीं है। सर हमारे पीछे मुस्लिम लड़का छोड़ता है, लड़का छोड़ के हम लोगों के, वो लड़का हम लोगों के साथ गंदी गंदी बातें करते हैं, हमारे पीछे हर लड़का छोड़ते रहते हैं। कभी हमारा मम्मी को धमकी देते हैं ये मत करो वो मत करो तो आपकी बेटी के साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उल्टा सीधा कुछ भी बोलते रहते हैं सर। मेंटल तबीयत खराब हो गई मेरा कुछ दिन से सर उसकी चक्कर में, क्योंकि हम जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, रिया के चक्रवर्ती के अगेंस्ट के लिए, सलमान के अगेंस्ट कुछ भी पोस्ट डाले, हम विश्व हिंदू की लड़की है, विश्व हिंदू परिषद की, कुछ भी पोस्ट डाले, ये पोस्ट हटा दे, सुशांत के लिए मत बोल, सुशांत के लिए मत बोल, जस्टिस मिलेगा कि नहीं? सर हमारे पास एक एक ठोस प्रूफ है, क्योंकि हमको पूरा चक्रव्यूह में घुसा लिया था, हमारा नंबर लेके पूरा चक्रव्यूह में हमको घुसा लिया था। आज अगर हमारा कुछ भी हो जाए तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ प्रीति रूपल है, क्योंकि प्रीति रूपल ने कुछ, हम उसके अंदर इतना घुस चुके थे, उसके बारे में इतना जान चुके हैं कि कोई नहीं सर, हम लोग इनफैक्ट बहुत डर चुके थे, लेकिन अब हम हिम्मत करके बोल पाए क्योंकि हमारे साथ हमारा दो बहन है, हमारा दीदी है, सुशीला दीदी, पीयू दीदी है, इसीलिए हम हिम्मत करके आगे आ पाए सर। और हम तो आपको पहले से ही जानते हैं सर, क्योंकि हम जानते हैं आप बहुत ब्रेवली लड़ते हो। इनफैक्ट 15 अगस्त में जायदा के साथ आपके लाइव में भी आए थे, हम देखा है सर, हम सबको बोले कि वरुण सर बहुत ग्रेट है, वरुण सर की लाइफ में कोई भी मिडल होके बोल सकते हैं। मेरी बात तो नहीं अभी हम करेंगे, बट मैं सिर्फ आपके थ्रू बाकियों को भी यही मैसेज तो जरूर दूंगा कि सबसे पहली बात तो ये होती है कि कभी भी आप हर किसी के साथ अपना पर्सनल नंबर या डिटेल शेयर कभी ना करें। यहाँ पर हम लोग सोशल मीडिया पे जब से आए हैं, हम सब लोग बहुत अटैक, ट्रोलिंग, सब कुछ देखते आए हैं, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एडवोकेट शरण भी यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी इसको लीगली थोड़ा सा जरूर बात करेंगे। बट एट द सेम टाइम अब इस टाइम पे अगर आपके अकाउंट्स हैक कर लिए गए हैं और या आपके अकाउंट हैक करने की कोशिश होती है, तो सबसे पहले तो प्लीज आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करें, अपने पासवर्ड्स चेंज करें और उन लोगों को अनफॉलो कर दें। आपने जिसका नाम लिया, रिसेंटली मेरी भी उनके साथ एक ही इंटरेक्शन हुई थी, मैं भी थोड़ा सुन के उनको थोड़ा इंस्पायर हुआ एकदम से, पर आपके बोलने के बाद अब ऑब्वियसली मैं भी देखूंगा, मैं भी ध्यान रखूंगा कि कौन क्या कर रहा है। हमारे पास एक एक प्रूफ है, हम सुशीला दी, पीयू दी को सब दे दिया है, वो लोग भी आपसे बात कर, हम लोग खुद प्रूफ दिए हैं, वो खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं जस्टिस मिलेगा कि नहीं गारंटी नहीं है, छोड़ दे ये सब, छोड़ दे चुपचाप अपना ये देख, उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला है। सर क्यों सर मेरी मम्मी को क्यों धमकियां दी जाती है सर, क्यों सर ऐसा होता है बोलिए? और सर 2 दिन पहले मुझे
पाकिस्तान के नंबर से कॉल आया था। किसी ने फोन कर ये कहा कि मैं रिया चक्रवर्ती की रिलेटिव हूँ। यह था कि मेरी और नंदिनी का रिया चक्रवर्ती के साथ ब्लड कनेक्शन है और इस वजह से हम लोग रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बात करते हैं। मेरा जो भी पोस्ट है या फिर मैं जो भी गाना सुशांत की फोटो के साथ सेट कर स्टोरी पर डालती हूँ, वो सारे के सारे फोटो तो सुशांत का होता है, मेंशन सुशांत का नाम होता है, लेकिन मेरा बोलने का तरीका या फिर मेरा कुछ भी फीलिंग होता है रिया चक्रवर्ती के लिए। तो सर आई थिंक मुझे तो ये याद नहीं है कि मैंने ऐसा भी कुछ कभी किया है या फिर कुछ बोला है रिया के खिलाफ, मतलब रिया को लेकर मैंने कुछ बोला है। सर फिर भी मुझे ऐसा धमकी आ रहा है और फोन कर मुझे इतनी गालियां दी कि मैं आपको बता भी नहीं सकती, इतनी गालियां उसने मुझे दिया था। और कुछ दिन पहले फिर से मेरी मम्मी को कॉल आया, बट सर मेरी मम्मी का नंबर भी किसी के पास नहीं है। फर्स्ट बात ये है कि मेरी मम्मी, मैं सुशांत के लिए लड़ रही हूँ, इसलिए मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं है सिवाय मेरे हस्बैंड के। तो सर जब मेरे फैमिली मेरे साथ नहीं है तो ऑब्वियसली फैमिली का नंबर किसी जगह पर शो नहीं होगा, वो लोग जुड़े नहीं होंगे इस मुहिम से। तो उनका नंबर पता नहीं कहाँ से मिल गया सर। उनको फोन कर धमकियां दी कि मैंने सुशांत के लिए अगर बोलना बंद नहीं किया, इस मुहिम में आवाज उठाना बंद नहीं किया, तो मेरा तो लाइफ रिस्क है, मेरा 6 साल का बेटा उसका भी लाइफ रिस्क है एंड मेरी पूरी फैमिली का भी लाइफ रिस्क है। वो लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे गोली मार देंगे, मेरे फैमिली को गोली मार देंगे या तो हमारे सर काट देंगे। इतनी बड़ी धमकियां दी थी मेरी मम्मी को फोन करके। सर यही बात है सिर्फ नहीं, प्रीति रूपल तनुश्री का जो हस्बैंड का पिक है, तनुश्री से बिना पूछे, मतलब मेरी जो जीजाजी है वो तनुश्री से बिना पूछे अपनी पोस्ट में डाल देती है इंस्टा स्टोरी में। सर ये कैसा बात हुई सर, किसी का पर्सनल पिक डालना, ये तो मुझे समझ में नहीं जी आया। और तनुश्री जी, आपकी प्रॉब्लम समझ गया हूँ और सुन चुका हूँ। आप प्लीज सबसे पहले तो जो आप प्रूफ हैं, जो भी एविडेंसेस हैं, जो भी ये सब चीजें करके हैं, मिलेगा क्या इन लोग को? आप अगर सोशल मीडिया पे नहीं डालना चाहते या अगर डाल सकते हैं तो डालें, नहीं डालना चाहते तो प्लीज आप ऑफलाइन मेरे साथ जरूर शेयर करें। और जो मेरे मन में सर आपका व्हाट्सएप नंबर? मैं आपको वैसे तो स्क्रीन पे ही है मेरा नंबर, सामने डिस्प्ले हो रहा है, आप वहां पर व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, ठीक है। एंड बाकियों को मैं यही मैसेज दूंगा इस टाइम पे कि सुशांत के लिए अगर कोई भी खड़ा हो रहा है या समीर वानखड़े के लिए कोई खड़ा हो रहा है और अगर आपको कोई टारगेट करता है तो प्लीज रेज योर वॉइस, लेट अस नो एंड वी विल बी टुगेदर इन दैट। बट एट द सेम टाइम प्लीज आप अपने पर्सनल नंबर्स, अपनी पर्सनल डिटेल्स लोगों के साथ शेयर मत करें। अगर आप बहुत ही ज्यादा कुछ करना भी चाहते हैं तो प्लीज मेक श्योर यू हैव अ सेपरेट नंबर टोटली कंप्लीटली आउटसाइड ऑफ योर पर्सनल लाइफ, ताकि अगर वो नंबर लीक भी होता है, एक्सपोज भी होता है तो यू आर नॉट एट रिस्क। बट यहाँ पर आई विल सर अगर सर ये प्रीति रूपल, सर और एक चीज बताना, प्रीति रूपल रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कुछ भी बोलूं तो प्रीति रूपल मेरे को धमकियां मारते हैं, रिया के खिलाफ कुछ मत बोल, रिया के खिलाफ आवाज कैसे उठाए, डायरेक्ट बोलते। मेरे को तो लगता है सर ये प्रीति रूपल सलमान खान और रिया मैं इसको डेफिनेटली देखूंगा ऑफलाइन। थैंक यू, आपने दोनों ने आप खुद ही देख लेना सर। यस आपने सामने ले आए हैं। आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल विल आल्सो हेल्प, सो प्लीज। सर आप बहुत अच्छे हो सर, आप सच में बहुत अच्छे हो। जॉयदा के साथ एक बार आए थे ना सर, आप बहुत अच्छे हो सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू तनुश्री जी, दोनों को फॉर ब्रिंगिंग दिस टॉपिक एंड अवेयरिंग अस ऑफ अबाउट दैट। सो थैंक यू एंड विल डू थैंक यू सर। जय श्री राम। जय श्री राम। जय थैंक यू सर। जय श्री राम। जय श्री राम। श्योर, थैंक यू। ऑलराइट प्रदीप जी, प्लीज गो अहेड। जय भारत। गुड इवनिंग वरुण। गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू? उन लोग को मैं बंगाली में एक लाइन बोल देता हूँ। हाँ जी, तो मैं एक लाइन बंगाली में बोल देता हूँ। बोलो बोलो। हाँ, তোমরা একটু ওয়েট করো, শরণ জি যখন কথা বলবেন he will give you some idea what to do and what not to do. Just follow strictly, that's all. अच्छा पॉइंट पे आता हूँ वरुण जी। पॉइंट पे आता हूँ। जो डिस्कशन चल रहा था मेरे को लगा एक्सटेंशन पॉइंट आपको मैं ऐड कराने चाहता हूँ थोड़ा सा। हाँ जी। हम लोग एसएसआर के जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, 1.5 साल हो गया। अभी हमारे पास एक ही जो देवदूत है वो है समीर वानखड़े, चट्टान के माफी खड़ा हुआ है ना। बिल्कुल। जो जेन्युइन आदमी है, जिसको तोड़ा नहीं जाता, जिसको हटाना नहीं जाता, जिसको भटकाना नहीं जाता है। They have no opportunity, no scope. They probably tried in a lot of other ways to provocate him or to malign him or some other things like pressurizing him and even blackmailing him. Doesn't work.
now they are coming with a new ideas. So मेरे को लगता है थोड़ा हिंदी में बोल दूं तो अच्छा लगेगा ना, थोड़ा इजी हो जाएंगे। तो अभी उनके पास एक नौटंकी वाले नया गेम चालू हुआ है जो मेरे को लग रहा है इट इज वेरी डेंजरस ट्रेंड एंड वी हैव टू बी मोर एग्रेसिव नाउ to defend Samir Wankhare, to defend NCB, and for our own interest, we are the volunteers for SSR justice. And that is the main cause why we need to now come up with a stronger voice. तो मैं बोलने चाहता हूँ ये जो गंदा नाली का कीड़ा निकल के आ गया है ना, अब बहुत तरीका का बहाना चल रहा था एलिगेशन लगाने का, कभी बोला मालदीव पे गया, फिर बोला दुबई में गया समीर वानखेड़े के बारे में, फिर उनके बारे में अभी लगा रहा है he had got 2 marriages। अरे भाई पर्सनल लाइफ बारे में क्यों बात करते हो? तुम लोग बंबई वाले लोग तो 4 6 10 शादी करते हो, शादी में नहीं करते, बिना शादी के कितने बिना शादी रिश्ते बना के बैठे रहो, कितने गंदगी करते हो तुम लोग को, कोई 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 लिमिट है क्या गंदे? बिल्कुल। तो मेरे को कहने का मतलब है, मैं कहने चाहता हूँ we should start a new motion। ये मेरे को लगता है शरण जी भी है, that's why I'm interested to share here। मेरे को लगता है we need to start to saying arrest Nawab Malik। The dialogue is arrest Nawab Malik for conspiracy against government agencies and trying to disrupt the investigation process against the drug gang। और ये डिमांड प्राइम मिनिस्टर हो, गवर्नमेंट की जो होम मिनिस्टर हो, सबके अटेंशन पे लेने का लिए एक मोशन का माफी किसको छोड़ने पड़ेंगे, बिकॉज दिस इज एक्चुअली एक क्या कहता हूँ हमारे एक जरिया होगा टू रेज द वॉइस इन सपोर्ट ऑफ एनसीबी, इन सपोर्ट ऑफ समीर वानखेड़े एंड all other officers who are honestly working to say them yes, we stand on behalf of you people, we don't care who the gundas are, who the dalals are। और ये गंदे बदतमीज वाले लोग जो हैं कितने पैसा कहाँ खिला रहे हैं। और एक पॉइंट मेरे को लगता है वो भी हम ऐड कर सकते हैं क्या नहीं है, इसलिए मैं शरण जी को बाद में बोलूंगा, मेरे पास शरण जी है अभी, तो आई एम हैप्पी टू से लाइक यू नो दो जो मीडिया हैं इसमें 1-2 टीवी छोड़ के, जैसा अर्नब का चैनल है 1-2 है ऐसा, दे आर प्लेइंग वेरी रिस्पॉन्सिबल रोल। बाकी जो गंदे चैनल्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप है, आज तक है, वो इंडिया टीवी है, रजत कपूर का क्या नाम, रजत शर्मा, सारे गंदगी लोग इकट्ठा गंदे नाली का जितने कीड़े हैं सब इकट्ठा होके फॉल्स नैरेटिव को स्प्रेड कर रहे हैं। वेदर वी कैन स्टार्ट अ प्रोसेस टू सेइंग दैट investigation should start against those channels who, without having evidences, trying to change the perception and maligning the government agencies with fact, not fact, false narratives। Or we demand immediately arrest of that guy who laid upon lots of claiming without any substantial evidences। वो आदमी कह रहा है 18 लाख का फायदा हो गया किसी का, उसमें 18 करोड़ का 18 करोड़ का फायदा हो गया है, उसने रिश्वत दे दिया है, और उसके बाद वो बहुत सारे दावा कर रहा है। तो आई वुड से हमारे मोशन पे हम ये भी बोल सकते हैं वी नीड इन्वेस्टिगेशन ऑफ नवाब मलिक along with the names he have used on that incident। जैसा शाहरुख खान का पीए का नाम लिया है, सबको पकड़ के लाओ, another crores of investigation start करो, how they have tried to malign the government agencies and give them a remarkable punishment, an instant punishment जिसको उनको मालूम पड़ेगा, पहले तो जेल में उनको डाल दो, गवर्नमेंट के पास ढेर सारे तरीका है। If somebody trying to create a dangerous thing against the government of India, there is a law in India। इसलिए मैं शरण जी को बोलूंगा इसके बारे में बोलने को, उसी एक्ट से गवर्नमेंट का जो एजेंसी कर सकता है, probably NCB may not do that, probably CBI is not the competent authority to do that, but there are all other agencies like NIA, for the sovereignty and security of the country and for the protection of the constitution of the country, they have the power। इन लोग को सीधा उठाओ, मंत्री कुत्ते मुत्ते जो भी है, गंदे नाली का जितने कीड़े मकोड़ा है, बॉम्बे में बैठ के बहुत राज करता है, उनको चूल बाल पकड़ के पकड़ो, सीधा खींच के दिल्ली में उधार लेके जाओ, दिल्ली में हेलीकॉप्टर में बैठाओ, नो इन्वेस्टिगेशन नो बात, पहले दिल्ली से उठा के ले चला जाओ, बॉम्बे के बाहर निकल के ले जाओ, दिल्ली में बैठाओ,
उसके बाद उसको दिल्ली वाला जो जेल है उसके अंदर डालो। 6 महीने वाला जो केस है जिसमें अभी 6 महीने तक कुछ नहीं होगा, भाड़ में जाओ ये सब मंत्री गंदे नाली का कीड़े। उसके दामाद 8 महीने जेल खाट के आया है, साले कुत्ते कुत्ते आदमी है, कोई इंसान तो है ही नहीं है इनका, ना शर्म है ना इज्जत है, फालतू आदमी है। शाहरुख खान का पैसा खा के मैदान पे उतरा है। इन लोग को सीधा उठाओ, 6 महीने का लिए जेल के अंदर पहले डाल दो। जो केस में इंडिया में बहुत आदमी है 6 महीने सड़ते हैं, उनको हियरिंग भी नहीं होता है। ऐसा बहुत सारे प्रोविजंस है इन इंडिया नाउ, जो एक मोटे भाई ने एक एक्ट डाला है, उसमें दे कैन डू दैट। एनिमी ऑफ द कंट्री अगर कुछ है तो उनको वो डाल सकते हैं। तो मेरे को यही रिक्वेस्ट है, एक मोशन हम स्टार्ट करें कि अरेस्ट नवाब मलिक and the conspirator against the NCB who want to stop the dark inquiry and to clean India. They are the enemy of the country. We want immediate arrest of those culprits. इस 3 लाइन का एक मोशन आप वरुण जी, आप अगर लीडर बन के चलाएंगे तो बाकी चैनल भी चलाएगा। हो सकता है उनके लैंग्वेज अलग होंगे, बट our motto is the same. If somebody is in a different angle, but the purpose is the same. We want to protect Samir Wankhede and we want justice of SSR. ये हमारी इशू है। इतना मैं बोलूंगा। अभी मैं सुनने चाहता हूँ शरण जी। और मैं शरण जी के बोलने से पहले आपको इतना जरूर कहूंगा प्रदीप जी, जब आप ये बात कर रहे थे और आपने ये कहा, साथ के साथ मैं यहाँ पर कंप्यूटर पे स्क्रीन पे मैंने ऑलरेडी ट्वीट कर दिया है, अरेस्ट नवाब मलिक एक शुरू किया है ट्वीट। उसके साथ साथ आप सबको मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जितना हम नवाब मलिक के अगेंस्ट कर रहे हैं उतना ही हमें सपोर्ट दिखाना पड़ेगा टुवर्ड्स समीर वानखड़े और उनकी वाइफ। कि उनकी वाइफ ने अभी थोड़ी देर पहले 8 मिनट पहले एक अपनी पर्सनल, उन्होंने भी अब 2 पिक्चर्स डाली हैं जहां पर ही इज वेरी प्राउडली टॉकिंग अबाउट हर मैरिज विद समीर। अनफॉर्चुनेटली मैं इट पेन्स राइट नाउ, इट हर्ट्स राइट नाउ कि एक वाइफ को बैठ के अपने हस्बैंड के लिए या एक उस ऑनेस्ट ऑफिसर के लिए इस तरह की अपनी पर्सनल मेमोरीज मोमेंट्स को शेयर करना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है कि कब शादी करी थी, बेस्ड ऑन दैट इडियट हु इज जस्ट मिलाइनिंग। दावत बोला गया है, फादर के नाम को खराब किया गया है। मैं तो कुछ भी नहीं हूं समीर वानखड़े के आगे, बट मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी मेरे सरनेम को कोई अगर खराब करे तो मैं उसको बहुत ऑफेंसिव लेता हूं। मैं हैरान हूं कि समीर वानखड़े के फादर के नाम को खराब करके दावत बोला गया, और फिर भी वो अपनी प्रेस रिलीज में ही सेइंग ऑनरेबल मिनिस्टर। He should have written this shitty minister. He should have written some abusive language in that press release, क्योंकि ये एक ऑफिसर नहीं लिख रहा, ये एक इंडिविजुअल, एक कॉमन मैन भी लिख सकता था प्रेस रिलीज फॉर एवरीबॉडी कि ये बकवास जो बकवास कर रहा है ये इंसान, बट he still has given him the respect, and that's really amazing to see कि अपनी पर्सनल लाइफ को, उनकी पर्सनल लाइफ को डिग करके हैं ये लोग, और इतने घटिया लेवल तक ये घटिया ले आए हैं जब उनकी वाइफ को वही फोटोग्राफ्स अपनी शादी की दिखा के एंड लुक एट द, मैं वो ट्वीट भी शायद स्क्रीन पे भी शेयर कर दूंगा, बट शी इज सो प्राउड ऑफ समीर वानखड़े एंड हर मैरिज विद समीर दैट शी रियली वांट्स टू सपोर्ट in this thing as well. Unfortunately, like this, इनका नेटवर्क का डिस्कनेक्ट हो रहा है, so I will wait for Sharan ji, but this is really sad to see कि किस तरह से समीर वानखड़े की फैमिली को और उनके फादर को डिग्रेड किया जा रहा है और किस तरह उनके फैमिली नेम को मलाइन किया जा रहा है। किसको बचा रही है सरकार? क्या चीज? ये तो सही समझना है। मतलब एक ऑनेस्ट ऑफिसर के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उनका जो करप्ट पुलिस वाला है उसकी फैमिली पे सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं? उस पे क्यों नहीं सवाल उठा रहा है? एग्जैक्टली। नहीं देखो भाई, सवाल उठाने का उनका स्ट्रेटेजी क्या है? उनका स्ट्रेटेजी है ड्रग गैंग को हम बंद करा रहे हैं इंडिया में, वो काम रुक जाए बस, और कुछ। और वो खुद गंदे आदमी हैं, सबको मालूम है। दे आर द डार्टीएस्ट पीपल इन बम्बई, सबको मालूम है। मुंबई में सिर्फ नवाब मलिक नहीं, संजय राउत भी उसी कैटेगरी का आदमी है। अब जस्टिस दिखाने का जरूरत भी नहीं है उनके बारे में, कोई एविडेंस का जरूरत नहीं, मालूम है गंदे आदमी है। उन लोग को अभी अंदर डालो, प्रॉपर केस डाल के 6 महीने तक कोर्ट का हियरिंग भी नहीं होना चाहिए उनको मालूम होना चाहिए। इससे पहले के अगर जेल में डाल दिया तो लगेंगे प्रोपेगेंडा करने, एक नंबर के प्रोपेगेंडा बाज हैं। इससे पहले के शरण जी का नेटवर्क में कुछ और इशू हो,
प्लीज गो अहेड शरण जी, क्या कहना चाहेंगे? आज बहुत गुस्सा है बहुत सारे लोगों में, अब आपको सुनना चाहेंगे, प्लीज गो अहेड, आप क्या कहना चाहते हैं? आप म्यूट है शरण जी। हेलो। हाँ जी, हेलो। जय श्री राम। जय श्री राम वरुण भाई। बोले सर। सुन रहे हो? आवाज सुन रहे हैं? हाँ जी, आवाज आ रही है। कुछ नेटवर्क का गड़बड़ है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हमें तो आवाज आ रही है शरण जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? Okay, we'll wait for him to join. I see Common Man come back in, so let me see if he has something to say. Common Man. Hey man, thanks for having me back. See, I think the other gentleman was saying actually about ki inko sharam bhi nahi aati or whatever, etc. I think do you guys remember? Do you remember Varun कि मैं कहता था कि जहाँ पर ड्रग्स है वहां पर चमड़ी का धंधा भी है, साथ में जाते रहता है. And once if you're into this business ना, बाकी फिर सही गलत it doesn't matter. It's all about money, money, money. कैसा पैसा बनाया जाए. That's it. So this guy, whatever his name is actually, okay, or he's talking from his backside, जो कि मीडिया में कह रहा है, ठीक है, and which he is actually, he's talking from his backside. तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. उसका the only goal over here कि कैसे रोका जाए जो कि अब चल रहा है. And it is picked up so much of momentum और इतना visibility हो चुका है. वो visibility किनको visibility हुआ है? Okay, world's second largest population, मतलब इतने सारे लोगों के पास अभी visibility है कि कौन क्या कर रहा है. तो तब इसकी फटी हुई है. धंधा पानी तो बंद होने वाला है. बंद नहीं हो गया तो भी तो डेफिनेटली इम्पैक्ट होने वाला है. मतलब अगर समझो एग्जाम्पल, अगर ये 1 करोड़ कमा रहा था, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, अब विजिबिलिटी पता चल गया, इसका 1 करोड़ का डेफिनेटली अगर इसको 50,000 भी हो गया, व्हाटएवर एक्सेट्रा 50% भी गिर गया, दैट्स अ लॉस टू हिम. तो ये कुछ भी करेगा यार, ये ही फॉल टू एनी एक्सटेंट. और ये एक ऐसा धंधा है जिसमें बस पैसा देखा जाता है, बाकी सामने वाला मरता है, मरने दो, क्या फर्क पड़ता है, उससे वो मर रहा है ना. दैट्स इट. You see, so this is all about money. It's bloody dirty game. Very और ये dirty. साथ में जाएगा and they'll fall to any extent. अरे you're talking about spoiling someone else's name. जब लोगों की जान ले लेते हैं या तो सिर्फ नाम खराब कर रहे हैं, किसी का रेपुटेशन खराब कर रहे हैं, credibility खराब कर रहे हैं, what the heck is that? That's nothing for them. Nothing. Absolutely. ठीक है. And yeah, issue. I think I like Pradeep's actually idea of actually pick them up, उठाओ सालों को, सारे के सारे को, जितना भी. And who the hell is ये पॉलिटिकल आदमी है, ठीक है. अरे तू who selected you to be a politician first of all? People. तू लोगों की भलाई करने के बदले तू कुछ और ही यहाँ पर धंधे कर रहा है. लोग भाग भाग के जा रहे हैं कहाँ पर, जो कि भी एनसीबी ऑफिस में, व्हाटएवर इन द सुप्रीम कोर्ट. इनको सबसे पहले पूछा जाना चाहिए तुम लोग को किस बात पे तुम लोग को हायर किया है और व्हाटएवर तुम लोग को पोजीशन दिया है. इफ यू कांट डू योर जॉब फॉर व्हाट यू हैव डन, फॉर व्हाट यू हैव बीन वोटेड फॉर, गेट द from there. Simple as that. Actually कोई और आएगा और ढंग का काम करेगा. Exactly. Irony is आप that focus करो यार. हमने बिठाया, इन लोग को हम लोग बिठाया और हम लोग ये लोग को निकाल भी नहीं सकते. So that is on us. That is not on the government or any other agencies etc. That is on us. और ये बात हम लोग पहले भी बहुत बार अलग अलग तरीके से डिस्कस कर रहे हैं. Fortunately or unfortunately ये लास्ट ईयर से अब वो एग्जैक्टली ये सेम पॉइंट बड़ा हो गया, हाईलाइट हो गया. और ये इसके केस में, इस बच्चे के केस में, और ये सो कॉल्ड बच्चे के केस में, ठीक है. सही बात. सो दिस इज डर्टी बिजनेस बॉस. ये लोग खुद का धंधा करने के लिए कुछ भी करेंगे. इनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मरता है जीता है, किसका रेपुटेशन खराब होता है नहीं खराब होता है, इट डजंट मैटर. बस पैसा आना चाहिए या पावर में रहना चाहिए. दैट्स इट. अब थैंक यू वेरी मच. I'm going to take शरण भाई, जय श्री राम. जय श्री राम. हाँ जी शरण जी, लेट्स सी. आवाज सुन रहे हैं सर? आवाज सुन रहे हैं? हाँ जी आ रही है आवाज. नहीं, एक कभी कभी फोन आते हैं, नेटवर्क खराब होता है, पता नहीं है, जानबूझ के हम बात करना नहीं चाहिए, ऐसा लग रहा है, ऐसा इच्छा हो रही लोगों की. हाँ जी. मोस्टली आई थिंक समीर जी के सपोर्ट में का ही सेशन है. ओके. और उनका अगेंस्ट में जो बात कर रहे हैं उनके अगेंस्ट में ही बात सेशन है, राइट? ओके. हाँ जी तो, बिल्कुल एक वो है ये. तो इन कंटिन्यूएशन ऑफ व्हाटएवर आई स्टेटेड इन लास्ट सेशन, ओके, वो एज इट इज रहेगा, कॉपी पेस्ट.
ओके, हाथी वाला, कुत्ता वाला, ओके। राइट राइट राइट। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं उसको आगे ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि है ना वो टॉपिक सेम है, लोग सेम है, एलिगेशन सेम है, इसीलिए नहीं, ये बढ़ते जा रहे वो हैं शरद जी। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ये जो बढ़ते जा रहे हैं, आज आपने आई डोंट नो आपने अभी देखा है कि नहीं देखा, समीर वानखेड़े के ऊपर पर्सनल, आपको मैं स्क्रीन पे एक बार फिर से दिखाता हूँ। जिस तरह के ये डिग्स लेने अब शुरू हो चुके हैं, उसका इस चीज से, इस केस से, किसी चीज से कोई लेना देना नहीं। दिस इज द पर्सनल अटैक। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये देखें आप, ये एक ट्वीट किया गया है। ये देखें, अब इसको मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ। अब ये देखें, इस तरह की कमेंटबाजी चल रही है, इतनी खूबसूरत बीवी को क्यों छोड़ दिया। फिर ये लिख रहे हैं, ये जो भी एक आईडी बनाया है, ट्विस्ट इन नारकोटिक्स ब्यूरो डायरेक्टर समीर वानखेड़े सागा, समीर दाऊद वानखेड़े got married in 2016 with Dr. Sabana Qureshi and has 2 daughters. Kranti Redkar is his second spouse. He happens to be distant relative of NCP Minister Nawab. इसका क्या कनेक्शन है इस पूरे केस से? पहली बात कि उनकी पर्सनल लाइफ में क्या है, क्या नहीं है, वो शादी किससे नहीं। उसके बाद यू नो ऑब्वियसली समीर ने एक प्रेस रिलीज की है, और के अंदर ऑब्वियसली वो बड़ी रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं, और उन्होंने बताया कि यू नो व्हाट, ये सब करने की इस टाइम पे समीर को व्हाट इज यू नो टाइम वेस्टेज, एनर्जी वेस्टेज, रिसोर्स वेस्टिंग, सब कुछ ये हो रहा है। उनको सिर्फ डिफ्लेक्ट किया जा रहा है, डिविएट किया जा रहा है फ्रॉम द एक्चुअल थिंग। और अभी जैसे मैंने कहा, आई डोंट नो इफ आई कैन, या लेट मी एक्चुअली डू दैट। एक मिनट, मैं आप सबको वो भी दिखाता हूँ जो अभी मैंने देखा, कि उनकी जो वाइफ हैं, उनको भी अब इस चीज के, अभी उन्होंने रिस्पॉन्ड किया विद फोटोग्राफ्स, जिसके अंदर वो लिख रही हैं, एक्चुअली लेट मी, उसके अंदर वो लिख रही हैं, Me and my husband Sameer are born Hindus. We have never converted to any religion. We respect all religions. Sameer's father too is Hindu, married to my Muslim mom-in-law who is no more. Sameer's ex-marriage was under special act. अपनी ये फोटोग्राफ्स डाल रहे हैं और सब कुछ लिख रही हैं। पहले भी इनको लिखना पड़ा, when you swim against the tide, it may drown you. But if the Almighty is with you, no tide, this world is big enough to drown you, because only He knows the truth. Good morning and Satyamev Jayate. तो ये देखें, इनको डिफेंड करने की, सपोर्ट करने की ऑब्वियसली जरूरत भी नहीं है, बिकॉज वी नो हु समीर वानखेड़े इज। बट इन लोगों की वजह से पूरी फैमिली को बाहर आके, पहले सिस्टर को अटैक किया गया, अब मैरिज के ऊपर क्वेश्चन करे जा रहे हैं। ये क्या चल क्या रहा है? दिस इज सो सो अननोइंग, इरिटेटिंग एंड सो हार्ट ब्रेकिंग टू सी कि एक ऑनेस्ट ऑफिसर अपना काम भी नहीं कर सकता इस कंट्री में। ये सिचुएशन हो चुकी है। ओके, फाइन फाइन। ये सारी चीजें है ना, मैं एक शुरुआत में इसी से करना चाहता हूँ कि नदी का स्रोत, ओके, और ऋषि का गोत्र, नदी का स्रोत और ऋषि का गोत्र, इसका कोई उसका पवित्रता के बारे में कोई शंका उपस्थित नहीं कर सकते, क्योंकि वो पवित्र ही माना जाता है, राइट? हाँ, तो ऐसा भी जो कर्मयोगी रहते हैं, जो धर्म के रास्ते पे चलते हैं, वो हमेशा नदी का स्रोत और ऋषि का गोत्र से रहते हैं हमेशा, ओके। इसीलिए वैसा अगर किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन के बारे में अगर बात कर रहे हैं, तो उनका जो विकृत मानसिकता का एक परिचय दर्शाता है, ओके। और पहली बात, एक केस के बारे में बात करो, आप एक मिनिस्टर हो, आप एक पब्लिक सर्वेंट हो, आपके पास कोई काम नहीं है, एक अदर पब्लिक सर्वेंट जो ऑनेस्टली काम करते हैं, उन्हीं के बारे में, उनका पर्सनल लाइफ के बारे में झूठे झूठे चीजें आप फैला के एक डाइवर्जन का जो टैक्टिक है वो यूज कर रहे हैं,
है कि नहीं, दुबई वाला हो या ये वाला हो, शादी हो, ये हो, बुद्धि भेद बोलते हैं। और कैरेक्टर असैसिनेशन किया तो जिस लोगों को हम सम्मान करते हैं उसका अगर कैरेक्टर असैसिनेशन किया तो लोग उनका फॉलो करना कम करते हैं, इसलिए उनका फायदा होता है और इन्वेस्टिगेशन पे भी उसका इम्पैक्ट होता है। मैं आपके माध्यम से एनसीबी को ये बोलना चाहता हूँ, आप अनिल सिंह साहब को ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। जो बेल स्टेज में इस बंदे का जो बेल आने वाला हाई कोर्ट में, जो एनसीबी का विटनेसेस हैं, जो होस्टाइल इनिशियल स्टेज, जो इन्वेस्टिगेशन स्टेज में होस्टाइल होके वो एफिडेविट फाइल किया, वो किस किस लोगों के संपर्क में था, उनका मोबाइल टावर लोकेशन, उसका क्या संबंध है, उसका बैंक बैलेंस हो, उसका कैश ट्रांजैक्शन हो, वो क्या क्या हुआ, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करके तुरंत उसके ऊपर भी एक्शन लेके वो भी पुटअप कर सकते हैं, ताकि यू पीपल आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द इन्वेस्टिगेशन, टैम्परिंग द विटनेसेस, है कि नहीं, उस ग्राउंड पे बेल रिजेक्ट करने के लिए बोल सकते हैं। और दूसरी बात, ऐसे ही गोसावी के अगेंस्ट में भी बात किया जा रहा है और भी विटनेसेस के ऊपर प्रेशर किया जा रहा है, केस डाइवर्ट करने का कोशिश हो रहा है। और ये बेल स्टेज में कल बेल का एप्लीकेशन है हाई कोर्ट में, ये सारे बेल को प्रभावित करने का कोशिश डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कर रहे हैं। वो बंदा अगर बाहर अंदर है तो उनका जो आका लोग हैं वो लोग बाहर रह के ये प्रभावित करने का कोशिश कर रहे हैं, ऐसा ही उसका इंडिकेशन है कि नहीं है। नहीं तो ये इनिशियल स्टेज में ये सारी चीजें बात करने की जरूरत नहीं है, अभी ये इररिलेवेंट और अनवारंटेड है। और आप तो मिनिस्टर हो, आप तो ना पुलिस हो, न सीआईडी हो, न सीबीआई हो, न कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो। आप एक पॉलिटिकल पार्टी आप रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन पहले आप अगर मिनिस्टर है तो मिनिस्टर पोजीशन से आप रिजाइन करो, फिर आप एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता बन के आप कुछ भी बात बकना है तो बक सकते हैं। एक मिनिस्टर को ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इमोरल भी हो सकता है, तो इसीलिए उनको तुरंत रिजिग्नेशन देना चाहिए, अपोजिट पार्टी को उनके ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए कि रिजिग्नेशन की जाए। और राज्यपाल को भी उनके अगेंस्ट में जो भी कंप्लेंट अगर करना है वो कर सकते हैं। और जहां तक इनका शादी ये वो ये सारी चीजें बोल रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जिसके पक्ष में बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली सिनेमा इंडस्ट्री, ठीक है, सिनेमा इंडस्ट्री का कैरेक्टर क्या है आप मुझे बताइए, उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या है आज के दिन में। पूरा सिनेमा इंडस्ट्री में कितने आर्टिस्ट आ गए हैं, वो क्या काम करते हैं, उनके ऊपर क्या एलिगेशंस है, रिसेंटली कुंद्रा एपिसोड से लेके और बहुत सारे लोग हैं, पॉर्न आर्टिस्ट को आप मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट में लाते हो, है कि नहीं, आपके माता पिता भाई बहन बच्चे बूढ़े सब फूंकते हो, रात 3-3 4-4 बजे तक नाक में फूंकते हो, जो भी है कि नहीं है, आप घर में बिजनेस करते हो ड्रग का, और भी बहुत सारा चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो, और भी बहुत सारे गलत दुनिया भर का और सेक्सुअल एक्टिविटीज हो या मर्डर्स हो, बलात्कार हो, ये सारे बात, इसके बारे में भी आप बात करो, मनसुख हिरेन का मर्डर के बारे में भी बात करो, आपके पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर एलिगेशंस लगे हैं, वो जेल काट रहे हैं, जेल के अंदर हैं, उसके ऊपर भी बात करिए, है कि नहीं है। बहुत सारे हत्याएं, सुशांत के बारे में भी, उस सुशांत का केस के बारे में भी बात करिए। नहीं करेंगे आप, कन्वीनियंटली आप करेंगे तो मेरे हिसाब से समीर जी को और उनको इतना आके इधर एक्सप्लेनेशन देने का और इतना डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, वो कॉन्सेंट्रेट करके एक सिंपल थोड़ा सा ये करके वो अपना काम कर सकते हैं। उनका मेन मोटिव ही यही है कि वो आगे किसी के ऊपर कार्रवाई करते वक्त 100 बार सोचे, क्योंकि ऑलरेडी उनका गर्दन तक ये हाथ पहुंच गया है कि नहीं। अगर खत्री और खान का मोबाइल या उनका रिकवरी या अनन्या पांडे का घर में अगर छापा पड़ के कहाँ क्या क्या एविडेंसेस इकट्ठा हो गए, आई डोंट नो, एनसीबी अच्छा काम करके सारे एविडेंस इकट्ठा करके कोई ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हमें तो काम और केस के बारे में बात करना चाहिए, है कि नहीं। अगर आपके पास कुछ एविडेंसेस है तो एविडेंस के साथ आप आना चाहिए सामने, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी हो, पब्लिक सर्वेंट भी हो, विदाउट एनी आउट ऑफ एविडेंस आके
बक 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 पब्लिक प्लेटफॉर्म में करना, तो ये दिखाता है कि आप कितने पानी में हो, आपका पार्टी कितने पानी में है, आपका सोच कितना है। यानी कि यू आर अगेंस्ट पब्लिक। पब्लिक चाहता है ड्रग इरेडिकेट करे, आपका दामाद ड्रग केस में इन्वॉल्व है, 200 गांजा के साथ रिकवरी हुआ है, वो केस अंडर ट्रायल है कि नहीं? बहुत सारे लोगों को, सिनेमा इंडस्ट्री के लोगों के अगेंस्ट में केसेस है, आप उनके पक्ष ले रहे हो, इसका मतलब है आप डायरेक्टली क्रिमिनल्स को सपोर्ट कर रहे हैं, यू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट चेन, राइट? तो सेंट्रल गवर्नमेंट को सीरियस लेना चाहिए इस सारी चीजों को, जो वो कर सकते हैं वो करके, जो रिस्पेक्टिव जितने भी लोग हैं, यहाँ का अपोजिशन पार्टी हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कानून के दायरे में रह के जो कार्रवाई वो कर सकते हैं वो करना चाहिए। मैं समीर जी को भी इस प्लेटफॉर्म से बोलना चाहता हूँ, आप भी in addition to whatever correspondences he is doing with Mumbai Commissioner of Police or other people in case of snooping and the recent one allegation, जो इनको लगता है कि इनके अगेंस्ट में कुछ एक्शन हो सकता है, तो ये भी एक डेरोगेटरी कुछ ना सेंटेंस करे, उस हिसाब से सूट फाइल करके भी इंजेक्टिव ऑर्डर भी ले सकते हैं हाई कोर्ट से या कोर्ट से, वो भी वो लीगल रेमेडीज ऑप्ट कर सकते हैं। ओके, मैं शरण जी आपको यहाँ इसलिए भी रोकूंगा, 2 केसेस चल रहे हैं इस टाइम पे, और मैं दोनों को साथ साथ फॉलो कर रहा हूँ। एक केस है जो समीर वानखड़े ने डाला है, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि दे आर बीइंग हरास्ड एंड दे आर बीइंग स्टॉप्ड। तो वहां पर जो जज का ऑर्डर है, जो कोर्ट का ऑर्डर है, वो लास्ट स्टेटमेंट में आपको पढ़ के बताता हूँ। आई डोंट नो इफ इट्स पॉसिबल फॉर यू टू रिव्यू इट और नॉट राइट नाउ, बट वो कह रहे हैं कि द ऑर्डर विल बी अपलोडेड। ये उस केस के लिए है जहां पर समीर वानखड़े ने इस केस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए डाला है। दूसरा केस चल रहा था जहां पर वो जो प्रभाकर साइल का एफिडेविट है, एनसीबी ने डाला था, एप्लीकेशन नॉट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द विटनेस प्रभाकर। उसके अंदर भी कोर्ट का जो ऑर्डर आया है वो ये कह रहे हैं कि ऑर्डर विल बी अपलोडेड। तो विच मींस के दोनों केसेस में ऑर्डर कुछ अपलोड हुए हैं। इज इट पॉसिबल, कहां पर अपलोड हुए हैं, क्या हुआ है ऑर्डर, एनीथिंग पॉसिबल कि हमें पता लग सके अभी, या कैसे होता है, क्या प्रोसेस है? नहीं, ऑर्डर 1 minute, आई एम रिसीव वन कॉल, 1 minute। ओके, जब तक शरण जी कॉल ले रहे हैं, दीप्ति जी प्लीज बोलें आप। Hi Varun bhai, hello everyone. I just want to say 2 things. One is for Sameer sir कि हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आर्यन खान को पकड़ के सांप की पूंछ को पकड़ा है, तो ऑब्वियसली सांप ने तो तड़पना ही है कि अब तो पूंछ पकड़ गई है। और ये सारे के सारे जितने भी हैं, everyone, each and everyone who is coming in support of Aryan Khan, they are somehow connected. चाहे वो सुनील शेट्टी हो, चाहे वो नवाब मलिक हो, चाहे वो गणेश वारकर हो, whosoever it is, despite like position or status, they all are connected. Second thing, regarding Ganesh Shivarkar, not specifically regarding him, but today I have a courage to come and speak about it. I will not take any names. You know everything very well, but just I will say, इतने moles है ना इस moment में right now. You don't know whom to trust. Okay, I got into a very like wrong company. मुझे लगा शायद वो लोग सही हैं. It was a very short span of time. Like I can count 10-15 days maximum, not more than that. But my logical brain, I am blessed. मैं यही बोलूंगी कि मैं बहुत ज्यादा time तक उस company में नहीं रही. Whatever they were saying, my logical brain was countering it. अच्छा ऐसा है तो क्यों, ऐसा क्यों है? I was questioning them again and again. And then 14th of June, it was enough for me. And I was like, okay, I am not gonna be a part of those people, group or whatever you wanna call it.
Then I left the movement for couple of months, and I felt very bad because I have planned many things on Sushant's first year death anniversary, but I couldn't do it because कुछ ऐसी चीजें पता चली जो मेरे लिए बहुत ज्यादा हो गई थी, and I couldn't take it emotionally. It had impacted me a lot, mental health, physical health, and बहुत सारी चीजें हुई. सो यही बोलूंगी, किसी को भी ट्रस्ट करने से पहले, जा रहे हो ओके सुनो सबकी, प्लीज अपने गट फीलिंग को ज्यादा ध्यान दो. एंड publicly I want to apologize to you for that short period of time. I thought you were wrong, but deep down in my heart I was like contradicting, nahi yaar, somehow it is not true whatever they are saying. So I am happy that I have not completely trusted those people, blindly trusted those people. So I have been saved. It was a very short period of time, but I am really sorry. दीप्ति, मैं यहाँ पर जरूर कहूंगा, आई नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, आई नो व्हाट यू आर रेफरिंग टू. आधे से ज्यादा लोगों को, आधे क्या, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आएगा, बट वी विल मेक श्योर, कभी जब आपको ठीक लगे, you really need to bring these things out in public as well. Reason being, it's not about कि आप मेरे को कुछ बता रहे हैं, मेरे बारे में कह रहे हैं इसलिए, बट इसलिए भी क्योंकि वो लोग बहुत सारे लोगों को अभी भी कंटिन्यूअसली बेवकूफ बना रहे हैं, अभी भी लोगों के लिए झूठ फैला रहे हैं. इन लोगों ने तो सुशांत तक को नहीं छोड़ा, उसको यूज करके. मेरा आज ये सेशन जो था गणेश के बारे में, जो मैंने सुनाया लोगों को, वो भी यही एक रीजन था कि मुझे आज जब सुनने को मिला, आई रियली हैड टू डू दिस. बट कई बार ये होता है कि हम लोग कई बार अपने पास अपने तक रख लेते हैं चीजें. एक टाइम आ जाता है व्हेन यू हैव टू कम आउट एंड टेल एवरीबॉडी द ट्रुथ. तो जब आपको लगे, व्हेनेवर यू फील, नो प्रेशर, मैंने आपको पहले भी कहा था. आई नो, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, लोगों के साथ इतना ज्यादा होता है ना कि फैमिली तक पहुंच जाते हैं, ऑल दैट आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो. And I also have kids, okay? They are big, they are also on social media. I don't want anybody to take a dig on them. So that is the only thing which is keeping me backstage. I And understand. it's just that I don't want my kids, my family to be dragged in. They are in support with me, everything, they are following up the case, everything they are doing, but I don't want them to pay the price of my mistakes, what I did. That's the reason why I am not able to, still not able to gather the courage. I And respect. No, I respect that, and that's why I never forced you, and never. For others, I'll just tell you. The first time she mentioned few things to me, मैंने obviously, I have nothing to hide, guys. So मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता. Obviously, it's always good. जैसे अमर आप कह रहे हैं, see, time exposes everyone. Yes, this is what I believe in. This is what I leave it to. अगर आपने कुछ गलत किया है, इट विल बाइट यू. आई एम टेलिंग यू अप फ्रंट. मैं अपने लिए भी कहता हूँ, और मैं घर में भी यही सिखाता हूँ, और बाहर भी मैं यही कहता हूँ कि अगर आप कुछ गलत करोगे बॉस, आप जितना देर मर्जी वो मुखौटा पहन लो, यू कैन नॉट बी अनदर पर्सन फॉर एवर. योर रियल फेस विल कम आउट. अगर कुछ मैंने गलत किया है वो सामने आएगा, पर अगर कोई और भी कर रहा है, एक मोमेंट तक ही तुम बेवकूफ बना सकते हो. एंड में आप ही के लोग, आप ही के साथ वाले आपको जज करेंगे, और अपने आप वो एक कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे कि व्हाट, वी वर एक्चुअली सपोर्ट. एंड अगेन, दीज आर पीपल हु माइट हैव अ वेरी ऑनेस्ट कॉन्शियस देमसेल्व्स. उसके लिए ये भी बहुत जरूरी है. नहीं तो जैसे कहते हैं ना कि क्रिमिनल्स तो आपस में आजकल हम देख ही रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं बैठे हैं, बेवकूफियां करी जा रहे हैं, उनके साथ और लोग मिलके करी जा रहे हैं. बट अगर आपका कॉन्शियस क्लियर है, अगर आप ऑनेस्ट हैं, you will come out of that. So I'm glad, Dipti, आपने ये टॉपिक भी किया, because आज इस टॉपिक पे I think it really made sense. yeah, that was the reason why I chose to come up, because बहुत सारे moles हैं. और please guys, think 10 times to whom you are trusting और वो क्या बोल रहे हैं. They will tell you, अरे हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, अरे नहीं नहीं आपकी और हमारी स्टोरी बिल्कुल सेम है. And then slowly when you think okay, they also have went through this or whatever, xyz जो भी वो आपको स्टोरी बता रहे हैं, when you start believing them, then they will fill your mind with so many lies,
बस इतना बोल सकती हूँ कि जो एक लॉयर साहब आए थे, सारे जुड़े हुए उसी से हैं, ठीक है, और बड़ी सारी स्टोरीज हैं. दे विल ट्राई एंड मेक यू लाइक एक्सेप्ट दैट कि हाँ वो जो बंदा बोल रहा है वो ही सही बोल रहा है. बस इससे ज्यादा और कंट्रोल कर रही हूँ, कहीं ज्यादा बोलना और सिर्फ इतना कहूंगा, ये सिर्फ लॉयर की नहीं है, लॉयर से रिलेटेड बहुत सारे लोग हैं और ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप को जेन्युइन एसएसआर वॉरियर बताते हैं. यस, यू कांट इवन थिंक ऑफ कि ये लोग तो. और या प्लीज गाइस, उनमें से एक ऐसे है जो आजकल हर स्पेस में दिख रही हैं. इससे ज्यादा मैं भी नहीं बोलूंगा, बट एंड ऑफ द डे मुझे डिग नहीं लेना, मुझे किसी पे भी डिग नहीं लेना. मैं तब तक वेट करूंगा, जैसे अमर ने कहा, इवेंचुअली इट विल हैपन. इवेंचुअली देयर विल बी पीपल लाइक दीप्ति हु विल कम आउट, हु विल एक्सपोज. आज मैंने गणेश के बारे में आपको एक सच्चाई दिखाई है, ऐसे ही कल को एक और कोई दीप्ति होगी, एक और कोई प्रदीप जी होंगे, एक और कोई शरण जी होंगे जो बाहर आएंगे और सच बताएंगे बाकियों का. So we will wait for that. We really don't want to put pressure on anybody to, say anything and put themselves or their family at risk. But at the same time, just be honest to yourself. And trust me, guys, Varun is not important. Deepthi is not important. Pradeep ji is not important. हम यहाँ आए थे सुशांत के लिए. अगर आप सुशांत के related कुछ अच्छा कर रहे हो, all the support will come to you. If you are doing something wrong, eventually you will fail. Eventually you will fail. So no, advocate Sonia, नहीं, आप गलत ना जाएं, please. नहीं, please, I am not taking anybody. No, she is very genuine, as far as I know, because I have never like talked to her. I have मैं never सिर्फ been इतना ही in touch कहूंगा, with her. this is all related to one big thug who is part of this campaign, जो सिर्फ ठगता ही आ रहा है इतने महीनों से, and there is no one kind of stopping. So that's all I can say. And let's not even target or put Deepthi or anybody else into any kind of issue. जब मौका मिलेगा, I would love to kind of have the entire thing out. बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, guys. That is why I say, आज मुझे गणेश का करना था, क्योंकि मैं नहीं सुन सकता. अरे सिम्मी जी रुक जाएं, सिम्मी जी प्लीज रुक जाएं. आप हर एडवोकेट का नाम ना लिखें अब चैट में, प्लीज. Oh my God, what the तो hell did I do? ये प्रॉब्लम होती है, यू टेक, जनरलाइज करें. इट इज ऑल अबाउट, मैं अपनी तरफ से बोल देता हूँ, मुझे नहीं पता कौन है दीप्ति, और दीप्ति को भी नहीं पता मैं कौन हूँ, बट इस चैनल पे मैं बता देता हूँ, दिल्ली का ठग है जिसके बारे में अभी बात हो रही थी. एंड नाउ प्लीज डू नॉट पुट एनी अदर एडवोकेट्स नेम. इट इज नॉट Yeah, अबाउट एक ही तो लॉयर है, उसको तो सभी जानते हैं, जो पी के कुछ भी बकता है, कुछ भी बोलता है. एब्सोल्युटली, या प्लीज और प्लीज. वही सेकंड थिंग, वी शुड सपोर्ट समीर सर. जैसे मैंने पहले कहा कि सांप की पूंछ पकड़ी है, अभी धीरे धीरे मुंह भी बाहर आ जाएगा सांप का, बट वी हैव टू सपोर्ट हिम बिकॉज these are like we can only make him feel yes, whatever he is doing, public is with him. क्योंकि इसी तरीके से शायद डरा के जो ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं उनको हटाया जाता है केस से, और ये सब शायद इसलिए भी हो रहा है कि उनका ध्यान पर्सनल चीजों में चला जाए और केस से उनका दिमाग हट जाए, वो और लोगों को ना पकड़े. मे बी आई एम रॉन्ग, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये सब जो पर्सनल फैमिली और सब इस तरीके से हो रहा है, शायद एक ये रीजन ये भी है कि जैसे अर्नब का सब कुछ इतना उसको उसके पुराने केसेस ओपन करके एंड ऑल दैट उसको वो किया था कि उसका ध्यान सुशांत के उससे डाइवर्ट हो गया, एंड देन ही इज नॉट एट ऑल टॉकिंग अबाउट सुशांत एनी मोर. सो मे बी ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है समीर सर को भी डाइवर्ट करने की. विद दैट आई विल टेक योर लीव because it's very early morning. Thank you so much. Thank you so much for speaking up. Thank you. Really appreciate that. All right. प्रदीप जी, लगता है शरण जी को कोई तो कॉल आ गई है, जिस वजह से ही इज गॉन बिजी. बट बहुत सारी ऐसी और बातें, बहुत सारी ऐसी चीजें बात करते रहेंगे. आई थिंक वी हैव सो मच टू से अबाउट. एंड मैं अभी वेट ही कर रहा था कि काश मुझे उस ऑर्डर के बारे में पता चल जाए. Hopefully Samir will let me know, otherwise I will keep a check on what happened to those two cases. Let's all pray. जो सेकंड केस है उसमें मेरे को ज्यादा इस टाइम पे इम्पोर्टेंट दोनों केसेस हैं, बट मुझे सेकंड ऑर्डर में ज्यादा इस टाइम पे इंटरेस्ट आ रहा है, और आई रियली वांट टू गेट टू द बॉटम ऑफ इट. आई विल गेट ऑन टू द बॉटम ऑफ इट. आई विल शेयर द इंफॉर्मेशन विद ऑल ऑफ यू एज वेल, जिसके अंदर ये जो नया ही
बंदा पैदा हुआ है और अपने आप को कहता है कि उसने समीर वानखड़े ने उससे ब्लैंक पेपर साइन कराए एंड ऑल दैट नॉनसेंस ही इज सेइंग, उस केस के अंदर द एनसीबी हैज tried to ignore or have an order to ignore whatever he is saying. तो लेट्स होप कि उसके अंदर जो ऑर्डर पास हुआ है उसके अंदर यही होगा. I'm really glad. Thank you so much for sharing, Carolyn. Chichore has won the 69th, 21st, 69th, 21 National Award as the best Hindi film. And उसके डायरेक्टर ने भी ये लिखा है कि सुशांत हैज मेड अस ऑल प्राउड. सुशांत ने तो पूरी दुनिया में इंडिया का एक तरह से नाम रोशन किया है. आई स्वेयर टू गॉड, अब अगर समीर या सुशांत का नाम किसी ने खराब किया, आई स्वेयर इस चैनल पे और मैं तो यहाँ उसका मुंह तोड़ने के लिए तैयार बैठा हूँ हर तरह से, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो या वो मुझे कोई और एक्शंस भी लेने पड़े. एंड आई इनकरेज यू ऑल टू प्लीज स्टैंड अप एंड रेज योर वॉइस. End of the day, nobody should be able to malign Sushant, Sameer, or anybody who's fighting for truth or fighting for justice. और कोई अगर गलत कर रहा है तो then you have the moral responsibility to expose them, to talk about them. Do not keep stuff to yourself. It will not do any good. जाने से पहले कुछ और प्रदीप जी कहेंगे, आप कहना चाहते हैं? हाँ वरुण जी, मैं क्लोजिंग एक छोटा सा स्टेटमेंट देने वाला हूँ. Sure. ये समीर वानखड़े, ही इज ए वेरी जेन्युइन, पोलाइट एंड वेरी ऑनेस्ट सॉर्ट ऑफ पर्सन. तो ये गंदगी जो है ना, ये जहरीला जो सांप है जो डसने के लिए जंगल से निकल के आ रहा है, गंदे नाली से आ रहा है, समीर जी उनको पोलाइटली अपने कुर्सी में बैठ के, बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन सिटिंग ऑन ए गवर्नमेंट चेयर, दे कांट डू सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स व्हिच वी प्रिविलेज पीपल हैव एट द मोमेंट. पहले तो हम विदेश में रहते हैं, हमें वो टच करना उनको लिए औकात पे नहीं है. और दूसरे बात है कि हमें मालूम है सारा दुनिया कैसे चलते हैं, वी नो व्हाट इज व्हाट. तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ अभी ज्यादा वक्त इनको देना नहीं चाहिए, हमें सीधा अटैक करना चाहिए ये जो जहरीले वाला गंदे आदमी है, क्योंकि ये दाऊद का गुर्गे है. सिंपल बात है, दे आर इन द पेरोल ऑफ द ड्रग गैंग एंड द ड्रग मनी इफ इज नॉट डिलीवर्ड दे लॉस देयर बिजनेसेस. तो इनका फाइनेंशियल लॉस हो रहा है. हम हिंदी में बोले तो, हमारे इंडिया का भाषा में बोले तो उनके चट्टे पट्टे हैं, गुंडे चोर बदमाश लोगों के चट्टे पट्टे हैं, उनके 4 आने का गुंडा है. 4 आने का गुंडा अभी मंत्री बन के इतना औकात बन गया उसका कि जो कुछ आके बोलते रहता है, बड़बड़ करते रहता है, और टीवी चैनल के साथ भी उनका चलता पलता है, बहुत कुछ है, इनका अपना सेटअप है, तो वो झूठे मक्कारी चीज वो चला रहा है. तो मेरे को ये कहना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्राइम मिनिस्टर जी का ऑफिस को, टू द पीएमओ's ऑफिस एंड टू द होम मिनिस्टर. They are very strong person at the moment. They are supporting NCB for the strong action. I'm requesting them to take appropriate authority to put this guy into bar. सीधा इसको उठाओ, ये जहरीला सांप को. ये नवाब फवाब कुछ नहीं है, मालिक फालिक कुछ नहीं है, 4 आने के कुत्ते हैं, भीख मांगा कुत्ता है, वो दाऊद का पैसा खाता है. इनको उठाओ, अप्रोप्रिएट केस डालो, इनको ऐसा केस डालो कि इनको मालूम पड़ेगा कि वो 10 लाख लेने वाला लॉयर भी इनको बचा नहीं पाएगा. और एविडेंस तो मिल ही जाएगा. इफ दे आर डूइंग रॉन्ग डूइंग फॉर द लास्ट 20-30 years, एविडेंस विल ऑटोमेटिकली कम आउट. जस्ट यू पिक अप द पर्सन. आपको कितने रिटायर्ड ऑफिसर मिल जाएंगे, कितने ऑन जॉब ऑफिसर्स मिल जाएंगे जो एनोनिमसली काम करके एविडेंसेस भी दे देंगे. कितने आदमी को वो कितने खतरनाक काम किया है, बर्बाद किया है, मालूम नहीं सबको. तो वो भी आ जाएंगे. द एविडेंस विल कम वन आफ्टर अनदर. हमने अपने आंखों के सामने देखा है राम रहीम का कैसा हुआ था. राम राय इतना बड़ा सांप होकर बैठा हुआ था, अभी जेल के अंदर पड़ा हुआ है. इन लोग का भी ऐसा ही होने वाला है. एंड द एक्शन शुड स्टार्ट राइट नाउ. वी डोंट हैव ए टाइम टू स्पेयर टू टॉलरेट दैट. कोर्ट में जो होगा होने दीजिए. समीर जी जो कर रहे हैं एज ए ऑनेस्ट ऑफिसर एंड द ऑफिसर्स टीम, whatever the office administration and the procedure, let them follow their process, official process. But as a people, as a well-wisher of the country, we have our responsibility to raise the voice to stop the wrongdoing. तो मैं बोलूंगा पहले ये गंदा आदमी लोगों को उठाओ, जैसा दूसरा आदमी का औकात ना होए ऐसा ऑफिसर के पीछे आके कुछ झूठ मूठ बोल के किसी को 10 लाख बस 20 लाख दे के झूठा एविडेंस बना के टेम्परिंग करके मेलाइन करने का कोशिश करा और इतने बड़े एक्शन को स्टॉप करने का कोशिश करा. इफ इट इज स्टॉप दैट मीन्स मोदी जी एक्शन विल बी डिफीटेड. हमारे होम मिनिस्टर का इतना बड़ा एक्शन विल बी डिफीटेड. इट विल बी ए नेशनल लॉस. वो हम होने नहीं दे जा सकते. हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए, इंडियन यूथ के फ्यूचर के लिए ऐसा होना कभी होना नहीं चाहिए. दैट्स ऑल.
So Barun ji, I am very open at the moment. I have today in various spaces where I have opportunity, I say arrest this guy immediately. एब्सोल्युटली, हर जगह जाके कहे, मैं तो यही कहूंगा और मैं तो सबको यही कहता हूँ, ये जहां अपॉर्चुनिटी मिले, यूट्यूब चैनल्स हैं, स्पेसेस हैं, ट्विटर स्पेसेस, फेसबुक के लाइव्स कर रहे हैं लोग, हर जगह जाएं, हर जगह ये वर्ड स्प्रेड करें, वी रियली नीड टू स्टैंड फॉर समीर वानखड़े एंड द एनसीबी टीम। और ये जो पर्सनल डिग लेने वाले हैं, इनको तो अरेस्ट हिम एंड जस्ट पुट देम बिहाइंड बार्स, एंड दैट्स एज सिंपल एज दैट। इन गुंडों को बिल्कुल भी सुनने की जरूरत नहीं है। एंड माय प्रेयर्स एंड माय लव टू इंटायर फैमिली ऑफ समीर वानखड़े, जो इस टाइम पे उनके काम के वजह से इतना कुछ पर्सनल अटैक्स भी देख रहे हैं, सह रहे हैं, और फिर भी दे आर कीपिंग देयर मॉरलिटी, देयर मॉडेस्टी in place. So hats off to this family, really proud of them. सत्यमेव जयते कह के ही मैं भी ये सेशन खत्म करूंगा। थैंक यू We सो are मच proud of joining. Samir Wankhede. We are proud of Samir Wankhede. Jai Hind, Jai Bharat, and I Jai will see you guys soon. Take care. Jai Hind, Jai Bharat.